Good, good morning, students. Here is Mangesh Naneshwar Borkar sir, Director, Sambodhi IAS Academy, Mumbai, Thane. Very soon we are starting our branches at Pune and Nagpur, possibly residential branches. And on this 4th June 2023, at Sambodhi Career Academy in online session, we are having with us my batchmate of UPSC Civil Services Examination, Abhay Nannavre ji. And Abhay Nannavre, he qualified UPSC Civil Services Examination first time in 2008, and he got selected for Indian Railway Account Service. And second time he got selected in 2009 as an IRS officer in income tax. Before that, he did his BE in industrial engineering from Nagpur, and further he completed his master's in business law from National Law University, Hyderabad. He completed LLB from Amravati University. Currently, he is pursuing his master's in business administration in finance from NMIMS Mumbai. Okay, and before he got selected as a IRS officer to UPSC, he got selected as a probationary officer in State Bank of India, and he worked there for 2006 to 2009. Okay, presently he is working as an additional commissioner of income tax at Nashik. So he hailed from Gadchiroli district of Maharashtra. So Gadchiroli district of Maharashtra, which is identified as tribal belt. Okay, and many of the it is basically identified as a remote area. Okay, and like in Maharashtra, it was an understanding that if if you want to punish some officer, so he need to transfer to the Gadchiroli district. So it was an understanding, and even today it is understanding of so many bureaucrats that अरे भाई अगर किसी को पनिश करना है तो गढ़चिरौली को भेज दो. तो ऐसे रीजन से हमारे अभय भाई साहब आते हैं, और बहुत ही लाइक हम लोगों ने 2004 में हम लोग मेंस में थे, यूपीएससी सिव्हिल सर्व्हिसेस मेंस आम्ही सोबत दिलेली होती. आम्ही SIC नागपूर मध्ये सोबत होतो, आणि त्याच्यानंतर मुंबईला सुद्धा आम्ही सोबत होतो. आणि एक काय म्हणता येईल की खूप जे बॅकग्राऊंड आहे, एक जसं गडचिरोली जिल्हा म्हटल्यानंतर थोडस एक आदिवासी बहुल जिल्हा, आणि त्या ठिकाणी डेव्हलपमेंट जो प्रकार असतो, तर त्याच्या संदर्भात अजूनही खूप प्रश्न आहेत. ओके, म्हणजे जिल्ह्याची डेव्हलपमेंट आहे, परंतु अजूनही अनेक असे रिमोट रिजन्स आहेत की ज्या ठिकाणी डेव्हलपमेंट नाही आहे, विथ रेस्पेक्ट टू एज्युकेशन, विथ रेस्पेक्ट टू इन्फ्रास्ट्रक्चर. खूप साऱ्या गोष्टी आहेत. तशा ठिकाणून अभय नन्नावरे येतात, आणि त्यांनी खूप जिद्दीने, म्हणजे मी बघितलं की एक जिद्द जी होती आधीपासून मनामध्ये की आपल्याला बनायचंच आहे, युपीएससी क्वालिफाय करायचं आहे. सो ही इज अ व्हेरी ब्रिलियंट स्टुडंट बेसिकली. ओके, अँड नाउ ही इज अ व्हेरी ब्रिलियंट ऑफिसर टू. Okay, who is contributing in the nation building activities. So without wasting his time or my time, and even your times, I welcome Abhay after a long gap on the platform of Sambodhi Career Academy, Mumbai, Thane. And I welcome you, Abhay. And thank you. Now over to you. You can guide students related to mentality of preparation, what is basically required for confidence, because since we are operating from Mumbai region, okay, means we started at Nagpur in 2004-05, and then after my first means, and then I shifted to Mumbai. So what is problem with students of this region? They are very brilliant, but they are not very much confident about civil services. म्हणजे जिथे कॉन्फिडन्स दाखवायला पाहिजे तिथे दाखवत नाहीत, आणि भलतीकडे कॉन्फिडन्स दाखवतात. हा मोठा प्रश्न आहे त्या विद्यार्थ्यांचा. अदरवाईज दे आर व्हेरी ब्रिलियंट. त्यांच्यामध्ये खूप पोटेन्शियल आहे, आणि इन जनरल सगळीकडेच महाराष्ट्रामध्ये आपल्याला हे दिसतं
की विद्यार्थ्यांमध्ये पोटेन्शियल असतं पण कॉन्फिडन्स नसतो. खूप सारे कन्सेप्ट मिसकन्सेप्ट असतात. ओके, सो आपण संबोधीच्या प्लॅटफॉर्मवरून आपले खूप सारे जे ऑफिसर्स आहेत ते ऑफिसर्स म्हणजे आता पॅन्डेमिक पिरियडमध्ये तर 50-60 अधिकाऱ्यांनी सेक्रेटरी लेव्हलच्या अधिकाऱ्यांनी विद्यार्थ्यांना गायडन्स केलेला आहे. त्याचा खूप फायदा आपले विद्यार्थी घेतात. तर इतकं चांगलं गायडन्स त्यांना अवेलेबल आहे. आपण रेग्युलरली कोचिंगच्या माध्यमातून पण विद्यार्थ्यांना तयार करतो आणि संबोधीचे असे रेकॉर्ड्स आहेत मुंबईमध्ये की फर्स्ट अटेम्प्ट मध्ये आपले विद्यार्थी फर्स्ट अटेम्प्ट मध्ये IAS, IPS, MPSC बँकिंग स्टाफ सिलेक्शन क्वालिफाय झालेले आहे. सो व्हॉट इज माय एक्सपेक्टेशन दॅट यू टेल देम की why to prepare for civil services or rest of the services like MPSC वगैरह, and what should be our approach towards examination for success. Okay, like continuity, confidence, determination, all these things. Okay, and then why one should enter into services and few strategy you can share with them. Okay, so once again, Yes. I welcome and over to you. Thank you very much. Thank you, Mangesh. Is am I audible? Yes, you are audible. Firstly, congratulations, Mangesh, for starting this Sambodh Academy. And Thank you. And really, I saw your advertisement and news, all that, and found that you had so many good students who clear examination first attempt itself. As far as I remember, in our time, when I started from 4, we were together. That time, there are hardly some coaching and academies at Maharashtra, and people, they wanted to refer to go to Delhi for the coaching. And really, I missed that, because as far as I remember, I started in IS coaching center Nagpur, and in my first attempt I went to the interview. I think you remember that. Yes, But yes, for, yes. it is from 4 exam, but I finally entered in the civil service in 2008. I mean, almost I have to prepare 3 to 4 years, and that time I found lacking of this coaching, proper direction. Coaching is most important. So I firstly congratulate all the students who joined this academy. They got very good coach, who have the first hand experience, and proper resources, and who is guiding the student very well. Because that time I was lacking that, and if I still feel that if I got proper coaching or direction that time, I was just clear first or second year itself. But anyhow, that was a different issue. Firstly, I will divide my session into two parts. First, regarding how to prepare, that I will share my personal experience, and the second is experience share, is means how I prepare, and what difficulty I have faced during these preparations. So I start with the my experience sharing. As Mangesh sir already told that I started preparation in Nagpur 2004, and in first attempt itself I went to the interview. But that time, what I realized is getting to interview is not a issue, because you have to get selected final list. So it is a preparation of the civil series, like a getting yourself matured. Means, what are the mistakes you have done during your preparation for prelims, mains, and interview, because there are 3 stage exam. So over the period, with the passage of time, I got experience, and get better from time to time. So the first thing is first thing what I think is that you just focus on your goal or directions. Mangesh sir already told that I belong to Gadchiroli district, and just I joined that session 10 minutes before that, and Mangesh was describing about the uh, Naxalism issue. I was the first officer first person who prepared, who cleared the civil service exam from Gadchiroli districts. But I proudly tell you that uh, I'm not the only student from here. After I get selected in civil service, now almost 3 to 4 students from Gadchiroli districts who are get selected in the civil service examinations. So for the preparations,
Mangesh, I'm audible, na? Yes, 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 yes. Yeah. For Please continue. so I just focused. I asked all the students to just first clear your goal. Just determine your goal, whether you want to which direction you have to go. So after doing my engineering, my first focus was to I want to become a civil servant. So my focus was IS. Actually, my selection was for IPS. That was my second choice, but due to medical problems, I was rejected for IPS. After even selection, I again tried for the IS. But anyhow, probably it is not my destination. So I landed in IRS, and now I'm happy here. So, but before that, I I almost 4 years in the bank. So during my bank tenure also, my focus was only civil service. I want to join IS. That was my target. So I asked all the students to just first clear your goal, whether you where you want to go, and for that, during 4 years of my banking job, I was physically in the bank. So because my financial problem was there, my father was retired, and I have to join the bank. So I cleared PO exam, and I joined the SBI. But I was physically in the bank, but mentally my target was to prepare the civil services. So 4 year, I never give up. I just always think of civil services, and my target was fixed. Okay, I want to go for the IS. So I done my during that period. I used to do my work from morning 9 to 6, 7 o'clock, and after that I used to prepare. So my target was clear, my direction was clear, and never give up. And during that period, banking job was very difficult because other people they were fully preparing for the series. So they have 24 hours time. But for me, it was hardly 12 hours was there with me. So what I done, I made small notes of the pocket diary, in the pocket diary of my option was prepared and geography. And whenever I got time in the bank, that slot time, lunch break, or sometime there was no customer, I used to take my pocket diary from my pockets and just go through the notes. So, that notes was still there with me, and that was the uh, main crux or strategy which helped me for the preparation. So, that was a main contribution from there. Second is the strong determination. Was is the most important thing for the civil services. As you know that all the civil services, there are so many students. Almost every year, around 5 lakh students are preparing for the civil services. They appear for there, but the main competition is among the 1 lakh students who are very serious. So be serious about your studies, and you have to be you have strong determinations. Uh, in my bank job also, I never give up. I even in my latter period, I have the money. Initially, I was having financial problems. Latter part, I have the money, but no time. But till that, up to I used to prepare up to night 2 o'clock, 3 o'clock. So that time management was there with me, because that was in my mind कि हम मुझे तो ना यहाँ से निकलना है, मुझे आईएएस बनना है, ये मेरा टारगेट था. तो मेरे दिमाग में हमेशा वही चीज रहती थी कि नहीं, मुझे यहाँ से निकलना है. तो मैं जब मेरा सिलेक्शन हुआ था, मैं चेन्नई में था. तो मुझे तो बैंक ने लास्ट टाइम मुझे छुट्टी भी नहीं दी थी. इवन जब मेरा मेंस था, नेक्स्ट डे मेरा मेंस था. इट वॉज मेरा फोर्थ अटेम्प्ट है मेरा, और आज शाम को मैं बैंक में बैठा हुआ था. मैंने उस पीरियड में मैंने वो दिया है. बट उस टाइम भी ऐसे था कि मेरे दिमाग में एक ही चीज थी कि नहीं, मुझे ये करना है. तो मैं क्या करता था, तो जैसे 6 बजे बैंक से आ गया, तो 6 बजे तक मैं फिजिकली बैंक पे रहता था और मेंटली भी रहता था. 6 बजे के बाद बैंक से मैं फिजिकली मेंटली डिस्कनेक्ट करता था, और मैं अपने नोट्स निकाल के विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं अपना पढ़ाई शुरू करता था. उस पीरियड में मैं चेन्नई में था. और मैं जैसे एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा कि चेन्नई जो है, वहाँ पे जैसे मैं महाराष्ट्र में था, तो हम लोग का फूड कल्चर अलग है. हमको खाने के लिए रोटी चाहिए रहती है, सब्जी, ये सब चीज चाहिए रहती है. चेन्नई में कभी सब्जी रोटी नहीं मिलती थी. तो मैं क्या करता था, 6 दिन तक मेरा परिस्थिति उस टाइम में, 6 दिनों तक मैं जो खाने को मिल रहा वो खा लेता था. यानी मेरा फोकस था कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा है,
मुझे बाकी लोगों से कंपटीशन करना है तो मुझे वहां बैठ के ये करना है, यानी मुझे टाइम नहीं मिलेगा। तो साथ में जिस दिन मैं फ्रस्ट्रेट होता था, तो फिर मैं एक स्टेशन के सामने एक पंजाबी ढाबा था, वहां जाके रोटी खा के आता था। फिर 6 दिन में वो मेरा वैसे ही था। तो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन जो था वो मेरे में था कि नहीं, मुझे एट एनी कॉस्ट यहाँ से बाहर निकलना, ये मेरा टारगेट नहीं है। तो मैं उसके लिए मैंने काफी सेक्रीफाइस किया है, यानी खाने को सेक्रीफाइस किया है, लग्जरी सेक्रीफाइस की है। कभी मैंने मेरी सैलरी नहीं देखी उस पीरियड में, मेरी सैलरी कितनी मुझे कुछ पता नहीं होता था, मैं उस चीज पे कभी ध्यान नहीं दिया। तो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होना बहुत जरूरी है। उसके अलावा जिस साल मेरा ये था, यानी हर साल मैंने मैंने 2004 से एक अटेम्प्ट छोड़ के हर बार मैंने इंटरव्यू दिया है। कहीं ना कहीं कुछ कम मार्क्स से मैं रह जाता था। तो जब मेरा मेंस में मैं चेन्नई था बाद में, और बैंक में ऐसा था कि मैं मेरा, क्योंकि मेरे दिमाग में हमेशा यूपीसी रहा है, तो मैं बोलते भाग जाता था, छुट्टी डाल के भाग जाता था। एक दिन बैंक वाले ने मुझे पकड़ लिया, एक टर्मिनेशन का नोटिस चिपका दिया, अगर बोले आपको अगर इस बार आप इसके बाद अगर छुट्टी लेंगे तो हम आपको जॉब से निकाल देंगे। फिर भी मैं ना कभी गिव अप नहीं किया, मैंने गिव अप नहीं किया। और यहाँ मुझे याद है कि 2008 का जब इंटरव्यू था, मेरा पोस्टिंग आंध्रा में एक छोटा सा गांव था, वहां मेरा पोस्टिंग था। और उस टाइम में था जस्ट मेरी शादी भी उस टाइम हो चुकी थी, घर वाले ये करके। तो मैं आंध्रा में छोटे में गाँव में रहता था। और वहां पे ऐसा था कि प्रिपरेशन के लिए कोई पेपर नहीं आता था, एक इनाडू करके तेलुगु पेपर आता था। तो फिर मैंने क्या किया, तो मैंने एक छोटा टीवी लिया। मेरी वाइफ क्या करती, दिन भर बैठ के दो नोट्स निकाल देती थी कि आज का क्या क्या न्यूज है। और हम दोनों रात को फिर जाने के बाद हम दोनों प्रिपरेशन करते थे इंटरव्यू का, क्योंकि मेरा मेन सिस्टम हो चुका था। जब जब इंटरव्यू मेरा था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, बट 9 या 10 अप्रैल को मेरा इंटरव्यू था 2008 में। और मुझे मेरे बॉस ने कहा बैंक में कि तुमको इंटरव्यू लेने जाने देंगे, तुम एक काम करना, यूपीएससी को लिख लो कि आपका डेट एक्सटेंड कर दो, क्योंकि 31 मार्च के बाद बैंक में ऑडिट होते रहता है। तो फिर मैं बोला कि सर ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। वो बोले नहीं, तुमको तो मैं छुट्टी नहीं दूंगा, क्योंकि बैंक में ऑडिट चल रहा है। तो मेरे सामने बहुत बड़ा डिलेमा था उस टाइम में कि बोले क्या करूँ, यूपीएससी तो मुझे पता है इंटरव्यू तो डेट पोस्टपोन नहीं करेगी। तो मैंने सोचा चलो यार, उस टाइम रोजगार हमी की योजना चलती थी, मैं बोला चलो यार, लाइफ में अगर रिस्क नहीं लूंगा तो एटलीस्ट खाने के लिए मेरे पास तो होता है। क्योंकि मैं हमेशा बिलीव करता था हार्ड वर्किंग में। मुझे ये इतना पता था कि कुछ ना कुछ तो मैं कर पाऊंगा। फिर मैंने क्या किया, और मैं मेडिकल पे इंटरव्यू दे नहीं पा रहा था। फिर कुछ भी जुगाड़ करके घर से एक लेटर मंगवाया कि मेरे फादर की तबीयत खराब है। और मुझे याद है कि 9 तारीख को सुबह 9:30 बजे मेरा इंटरव्यू था। और मुझे ना मुझे 7 तारीख तक मुझे बोला कि छुट्टी नहीं मिलेगी। तो फिर 7 को दोपहर में जब मेरा बॉस नहीं था, तो मैंने एक अप्लीकेशन डाल दिया, मेरे फादर की तबीयत खराब है, और मैं भाग गया। और वहां से बस पकड़ते हुए एक मंचिरल करके स्टेशन है, जो हैदराबाद से दक्षिण एक्सप्रेस निकलती है रात को 11 बजे, वो रात को 2 बजे वहां पहुंचती है। और मेरे पास रिजर्वेशन कुछ भी नहीं था। मैंने जनरल की टिकट ली, बैठ गया, फुल डे पूरा ट्रैवलिंग करके सुबह 5:30 बजे मैं निजामुद्दीन पहुंचा हूँ। और वहीं पे फिर फ्रेश होके 9 बजे मैं इंटरव्यू देने गया था। दैट टाइम मैंने मैंने ये सोच के रखा था कि ठीक है, जो नौकरी गई तो गई, छोड़ो, कुछ नहीं है। कि मेरे लाइफ में मुझे ये रिग्रेट तो नहीं रहेगा कि मैंने अटेम्प्ट नहीं कर किया। और मुझे याद है कि उस टाइम बाल गुरु स्वामी का पैनल था, मैंने फ्री फ्लो में इंटरव्यू दिया। और मुझे ख्याल से मुझे उस टाइम 180 मार्क्स मिले थे। उस टाइम में पहली बार मेरा सिलेक्शन हुआ है रेलवे अकाउंट्स के लिए। तो जैसे रेलवे अकाउंट्स के लिए सिलेक्शन हुआ, तो फिर मैंने बैंक से रिजाइन कर दिया। तो मेरा यही कहना है कि अगर आपको कहीं ऊपर जाना है, तो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ में ही रिस्क लो, और कभी गिव अप मत करो। उसके बाद जैसे मैं निकला वहां से और रिजाइन किया, फिर मैंने क्योंकि उसका उसको उस पहले मेरे पास पैसा नहीं था और टाइम था। बाद में टाइम, पैसा था लेकिन टाइम नहीं था। तो फिर ये जो फेस आया, तो फिर मैंने रिजाइन कर दिया, बोला जो मैंने बैंक से रिजाइन कर दिया। बट फिर भी बैंक का टर्म्स थे कि नहीं, वो 2-3 महीने मुझे छोड़ नहीं पा रहे थे। तो उसके बाद फिर प्रिपरेशन किया, और नेक्स्ट टाइम फिर जो है मैं, और मेरा सिलेक्शन जो था वो आईपीएस के लिए था। रैंक अच्छी थी नेक्स्ट टाइम में। बट वही कि मेडिकल प्रॉब्लम्स था, तो मेडिकल में रिजेक्ट हो गया। उसके बाद भी ऐसे नहीं कि मैंने गिव अप किया, क्योंकि आईआरएस ज्वाइन करने के बाद भी मैंने आईएएस के लिए ट्राई किया। नहीं हुआ, तो अभी यहाँ पे हूँ मैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वालिटी मुझे लगती है जो इम्पोर्टेंट है, वो पेशेंस। कि पेशेंस जो है,
वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको स्टेबल माइंड से प्रिपरेशन करना है। जब मैं बैंक में 3 साल करके जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, तो मुझे शुरू शुरू फ्रस्ट्रेशन लगता था कि नहीं यार, मेरा सिलेक्शन ही नहीं हो रहा, हर बार इंटरव्यू जा रहा हूँ, 2 या 4 मार्क्स से वापस आ रहा हूँ। क्योंकि मुझे मेरा पहला इंटरव्यू 2004 का था, जब मैं मेरे ख्याल से उस टाइम में 3 ही लोग थे जो फर्स्ट टाइम इंटरव्यू के लिए गए थे, उसमें से एक मैं भी था। तो ऐसे कॉन्स्टेंटली जाओ इंटरव्यू के लिए, फिर से प्रिपरेशन, फिर प्रीलिम पे आओ। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि ये पेशेंस जो है वो मेरे में था। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि लाइफ में ना, आपने वो रबर का बॉल देखा होगा। रबर का बॉल कैसा है, आप जितने जोर से उसको नीचे थ्रो करोगे, उतने ही जोर से वो बाउंस बैक होता है। तो लाइफ में वैसे रहो, जितने जोर से आप फेल हो गए ना, तो खुद में ये रखो कि उतने ही से तुम खुद को फिर ऊपर उठाओ। तो वही एक रीजन था कि मैंने कभी गिव अप नहीं किया। और खुद को स्टेबलाइज करके, बैंक के दिन में क्या होता था कि मैं जब वहां पे था और मुझे बैंक वालों ने, क्योंकि बैंक वालों के ध्यान में आ गया था कि ये आज आके भाग रहा है, 2-3 अटेम्प्ट में मैं हमेशा भागता रहा। तो लास्ट में जब मेरा चेन्नई में पोस्टिंग था, तो ऐसा बॉस मिला जो मुझे छोड़ता ही नहीं था। तो मैं सुबह 9 बजे बैंक जाता था, रात को 9 बजे तक हम लोग बैठे रहते थे। तो शुरू में ना 8 10 दिन में फ्रस्ट्रेट रहा मैं, मुझे वो घर जाने नहीं देता था, तो मैं पढ़ भी नहीं पाता था। देन मैंने एक चीज रियलाइज की कि यार मैं तो सिर्फ फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ, लेकिन मेरा टाइम तो है। ऐसे नहीं कि बॉस मुझे सिर्फ घर नहीं जाने दे रहा है। तो फिर मैंने क्या किया ना, खुद को स्टेबलाइज किया, बोला चलो यार, घर में पढ़ाई करना क्या और बैंक में पढ़ाई करना क्या। तो मैं क्या करता, जैसे मेरा काम खत्म होता था, एक कोने में अपने नोट्स निकाल के रखता था। मैं बोला मेरे पास पॉकेट डायरी हमेशा रहती थी, वो लेके रखता था। लैपटॉप कंप्यूटर था, तो वहीं पे एक आधा क्वेश्चन निकालो, उसको मैं रिटर्न करते बैठता था। उसके बाद में तो ऐसा होगा कि बॉस मुझे 10 बजे बोलता कि चलो घर जाना है, तो मैं कभी फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ। मैंने फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकल के स्टेबलाइज होकर जब मैंने सोचा कि नहीं, मुझे पढ़ाई करना है, मैं तो पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ाई कर सकता हूँ, उसके लिए मुझे घर जाने की क्या जरूरत है। तो मैंने खुद को स्टेबलाइज किया। और ऑलमोस्ट चौथे या पांचवें अटेम्प्ट में मैं निकला हूँ। तो मैंने अपना पेशेंस कभी नहीं खोया। और जहां तक मुझे लगता है कि पेशेंस जो है और स्टेबल होना माइंड का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सिविल सर्विस के एग्जाम के लिए। आपको अगर लगता है कि आप जितने 3 मंथ 6 मंथ, क्योंकि नई जनरेशन है, मैंने और मंगेश सर ने तो देखा है कि हम लोगों ने काफी प्रिपरेशन किए। अभी की जो जनरेशन है, दे वांट इजी सक्सेस। इजी सक्सेस के लिए 6 महीने प्रिपरेशन करूंगा और मैं उसका भी मैं मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, वैसे नहीं होता है। क्योंकि ये एग्जाम अभी मैं इस ऑथोरिटी के साथ बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट, मुझे 13 साल हो चुके हैं। मैंने प्राइवेट में भी कुछ दिन काम किया, बैंक में भी काम किया, रेलवे में भी काम किया हूँ। तो मुझे लगता है कि जिस जगह मैं हूँ, इट इज रियली, अगर आपको आपको जो गवर्नमेंट पोस्ट ऑफर कर रही है, एनी एनी सर्विस ऑफ सिविल सर्विसेज, वेदर इट IAS IPS IRS रेलवे कोर्ट, कुछ भी हो, वो इतनी ही इम्पोर्टेंट होती है। और इसका जो प्रिपरेशन है वो सही में आपको ना मैच्योर बना देगा। यानी मुझे ऐसा लगा कि मैं फर्स्ट टाइम में क्लियर नहीं हुआ, वहां की मैच्योरिटी और जब फोर्थ अटेम्प्ट में पास हो उसकी मैच्योरिटी, उसमें काफी फर्क आ गया था। तो अभी जो यंग जनरेशन है, मुझसे यही कहना है कि पेशेंस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप ये मत कंसिडर करना कि 3 महीने 4 महीने 6 महीने में आपके हाथ पे जॉब हो जाएगा। बट जब भी आपके हाथ में जो भी पोस्ट आएगी, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत ही क्रुशियल पोस्ट रहेगी, जिससे आप काफी लोगों का लाइफ चेंज कर सकते हो। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखो। उसके बाद में है कि स्टेबल बैंड की जो बात मैं बोल रहा था, कि प्रिपरेशन में क्या होता है कि शुरू शुरू में जब मैंने 1-2 अटेम्प्ट बॉम्बे से दिए थे, हम लोग क्या करते थे कि 9:30 का पहला पेपर होता था, तो 9 बजे तक हम लोग पढ़ते रहते थे। और जब मैं चेन्नई में था, तो मैंने ये चीज रियलाइज की कि नहीं यार, अभी तो अरे मुझे तो टाइम ही नहीं मिला। मैं तो एक दिन सिर्फ जिस दिन मेरा एक पेपर था, उसमें सेल मिलती थी, तो मैं रात को 8 बजे 9 बजे तक अपना काम करते बैठ के काम करते रहता था। तो मैंने भी सेकंड टाइम जो मेरा अप्रोच था, मेरा फोर्थ अटेम्प्ट का मेरा अप्रोच था। तो जब भी मैं पेपर देने आता था, मैं कभी बुक्स लेके नहीं जाता था। यानी पहले 3 अटेम्प्ट हमेशा ऐसे रहा कि मैं 9:30 का पेपर 9 बजे तक बैठ के पढ़ा हूँ मैं। उसके बाद जो फोर्थ और फिफ्थ अटेम्प्ट में जो है, मैं क्या करता था, आराम से जाता था, नाश्ता करता था, सीधा पेपर देने चला जाता था। बीच में जो 1.5 घंटे का ब्रेक रहता था, जहाँ तक मुझे आता है कि 9 to 12:30, और फिर 2 बजे से 5 का 1.5 घंटे में मैं खाना करके बस पेपर डाल के सो जाता था। तो दोनों अटेम्प्ट में मेरी स्ट्रेटेजी काम आई। क्यों काम आई? क्योंकि देखो, सिविल सर्विस का जो सिलेबस है ना, वो बहुत ही वास्ट है।
उसको आप आधे घंटे में कवर नहीं कर सकते हो। लेकिन उस टाइम क्या इंपॉर्टेंट है, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी। क्योंकि अगर आप मेंटली स्टेबल रहोगे तो आप प्रॉपरली उसको रिप्रोड्यूस कर पाओगे मेंस में, आपके आंसर्स प्रॉपरली आएंगे। तो मैंने ये रियलाइज किया कि जो प्रिपरेशन हम लोग पूरा साल भर नहीं कर पाएंगे, उसको हम लोग लास्ट के आधा घंटे में कैसे कर सकते हैं। तो मैं मेरा पर्सन यानी ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मुझे लगता है कि आप इस सबसे प्लानिंग बनाओ उसको कि कि लास्ट में खुद को स्टेबल रख के अगर आप पेपर्स दोगे तो आपका सक्सेस 100% है। क्योंकि आपका जो माइंड है, आपकी जो थिंकिंग्स है, वो वाइब्रेशन स्टेज में नहीं रहेगी। मंगेश सर है, आपने मेडिटेशन का, मैं अभी भी थोड़ा बहुत मेडिटेशन करता हूँ मैं। तो कैसे है कि आपका अगर माइंड स्टेबल रहा ना, तो आपकी जो आपने चीजें पढ़ी है, जो आपने लिखा है, जो भी ये किया है, वो अल्टीमेटली खुद ही उस टाइम में प्रॉपरली बाहर आ जाएगा। और ये मेरी चीज मैंने भी एक्सपीरियंस की है। तो प्लानिंग जो है वो इस तरफ से रखो। मैंने दोनों फेज में प्रिपरेशन किया है और मुझे लगता है कि प्लानिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। लॉन्ग टर्म प्लानिंग, मीडियम टर्म प्लानिंग और शॉर्ट टर्म प्लानिंग, तीनों चीजें होनी चाहिए। जैसे आप लोग अभी, जैसे मंगेश सर ने मुझे बताया कि कुछ स्टूडेंट्स 10th से लेके 12th से लेके डिग्री तक वाले हैं। तो मैं आप लोगों को ये कांग्रेस करूंगा कि आपने सही टाइम में सिविल सर्विस का आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया है। मैंने मेरे इंजीनियरिंग के बाद शुरू किया था और इसका सिलेबस काफी वास्ट है। तो आपको एक प्री प्रिपरेशन का एक काफी बड़ा आपको पैच मिला है, जो कि मुझे मंगेश सर में को उस टाइम में नहीं मिला होगा। हम लोग डिग्री के बाद में शुरू किए थे, हम उस टाइम इतना नॉलेज राइट। नहीं था, उसका अवेयरनेस भी नहीं था। तो ये पीरियड में आप अपने डिग्री करते हुए खुद प्रिपेयर हो सकते हैं। और सबसे पहले लॉन्ग टर्म गोल रखिए कि नहीं, मुझे मुझे इस साल में मुझे प्रिपरेशन करके मुझे सिविल सर्जन जाना है। एक साल का टारगेट, एक महीने का टारगेट और 1 वीक का टारगेट। प्लानिंग, मेमोरी मैनेजमेंट, नोट्स और प्रॉपर डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए आपका तो सर है आपके पास में। तो ये अगर आप प्रॉपर करेंगे तो आपका सक्सेस 100% है। जो लोग फर्स्ट अटेम्प्ट, जैसे मंगेश सर ने कहा, फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड में जो प्रिपेयर होते हैं ना, तो उनका सिलेक्शन का रीजन यही है। और हम अगर कुछ फेल होता है, जैसे मेरा मैंने एक चीज रियलाइज की लाइफ में, अगर मैं भी 4 या 5 बार फेल हुआ हूँ, तो हमको ऐसा लगता है कि हम लोग ना सिस्टम को गालियां देते हैं। राइट, कि ऐसा लगता है कि हम लोग जो है, हम लोग बोलेंगे मेरा लक नहीं था। कहीं ना कहीं हम लोग जो मिस्टेक्स करते हैं या हमें कोई लैकुना रहता है, हम उसको कभी फोकस नहीं करते। मेरा यही कहना है कि जब भी आप किसी भी स्टेज में फेल हो, तो शांति से बैठ के ना, सिस्टम को आप गालियां मत दो। आप देखो को आप में क्या गलती थी। क्योंकि जो लोग 5 लाख से जो 5,500 का सिलेक्शन होता है, उसी में यही डिफरेंस है कि जो लोग अपने वीकनेस को रियलाइज करते हैं, जो अपने इसमें जो प्रॉब्लम्स है, उसके स्ट्रेटेजी में प्रॉब्लम्स हुआ, उसके इन हैंड अप्रोच में जो प्रॉब्लम हुआ है। जैसे मैं एग्जांपल बताता कि धनंजय माड़ी करके हमारा एक दोस्त था, अभी वो आईआरएस में कस्टम में है। तो धनंजय विजेटीआई का इंजीनियरिंग ग्रेजुएट था। और धनंजय को ऐसा लगता था कि उसका मैथ्स बहुत अच्छा हैंड है उसमें। तो वो हमेशा सेकंड पेपर जो है वो मुझे भी बोलता था कि तुम्हारा भी इंजीनियरिंग है, तो तुम ना सेकंड पेपर जो जीएस का है मैथ से स्टार्ट करो, स्टैटिस्टिक्स से, जो 40 मार्क का स्टैटिस्टिक्स आता था। तो मैं उसको हमेशा बोलता था कि नहीं, मैं नहीं करूंगा, मैं लास्ट पे जाऊंगा। धनंजय क्या करता था, धनंजय ने शुरू के 2 अटेम्प्ट में उसने शुरू में ही स्टैटिस्टिक्स के पीछे रहा वो। और वो स्टैटिस्टिक्स के पीछे ही उसका ना बाकी का पेपर छूट गया था। तो कहीं ना कहीं उसने बाद में वो स्ट्रेटेजी चेंज की थी। तो मेरा यही कहना है कि अगर आप फेल होते, जैसे मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हुआ, मैंने कभी ये नहीं बोला कि नहीं मेरा यूपीएससी का गलती था। मैंने बोला कि मेरे स्ट्रेटेजी में क्या प्रॉब्लम हुआ है। तो मुझे याद है मेरा फर्स्ट ऑप्शन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था। तो उस टाइम ना श्रावण हर्डीकर सर जो थे, वो उनका सिलेक्शन हुआ था 2004 का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था। तो उनसे मिलने हम लोग पूना में गए थे। तो मुझे मेंस के फर्स्ट पेपर में 167 पर, फर्स्ट पेपर में 117 थे, सेकंड में 167 थे। तो मैं सर से बात किया, सर बोला सर आपका कैसा एक्सपीरियंस है पबैट के बारे में। तो सर का कहना था कि ना मैं पबैट पढ़ता कम था और सोचता ज्यादा था। तो मैं थोड़ी देर के लिए थोड़ा अचंभे में रह गया, सर ऐसे कैसे बोल रहे कि पढ़ना कम और सोचना ज्यादा। देन, और उस टाइम में मैंने ज्यादा प्रिपरेशन भी नहीं किया था, फर्स्ट अटेम्प्ट ही था मेरा। तो देन मैंने काफी थिंक करके बुक्स लाए, उसको अच्छे से पढ़ा मैंने। और देन मैंने भी रियलाइज किया कि नहीं, पढ़ने से ज्यादा सोचना जरूरी है। क्योंकि
हमारे टाइम में आई डोंट कि अभी पेपर का पैटर्न क्या मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे टाइम में 60 मार्क्स के क्वेश्चन रहते थे मेंस में, 60 मार्क्स के क्वेश्चन, कुछ 30 मार्क्स के क्वेश्चन रहते थे। फर्स्ट और फिफ्थ जो क्वेश्चन था वो 30 या 20 मार्क्स का रहता था, बाकी क्वेश्चन जो थे वो 60 मार्क्स के क्वेश्चन रहते थे। तो उसमें ना आप उसको कैसे रिप्रोड्यूस करोगे, और जो चेकिंग करने वाले वो लोग एक्सपर्ट रहते हैं, तो वहां पे वो स्किल काम आई। और मैं बता रहा था कि जब मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो आई थिंक मुझे 354 मार्क्स थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। जो टॉपर, जो पहले 10 टॉपर होते ना यूपीएससी के, उसमें से मैं एक था। और लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने बहुत ही लिमिटेड बुक्स पढ़े थे, और बाद में जो मैं जो स्पेसिफिक बुक्स है वो पढ़ते हुए मैं गया था। तो दैट वाज डिफरेंस। दूसरा कि ज्योग्राफी में भी ऐसे था कि ज्योग्राफी में हमेशा मुझसे कुछ गलती होती थी। और फॉर्चुनेटली जैसे मैं बोला ना कि आप लोग लकी हो कि आपको मंगेश सर मिले हैं, मुझे उस टाइम में मैं शुरू में क्लास नहीं कर पाया था, फाइनेंशियल इश्यूज थे। बाद में जब चेन्नई में जब मैं था, और उस टाइम में शायद मेरे लाइफ में इस वक्त जब जब मुझे पनिशमेंट मिल रहा है, पनिशमेंट पोस्टिंग जो भी, तो मेरे में कुछ भी अच्छा ही हुआ है। तो जब मेरा 2008 का अटेम्प्ट था, उस टाइम में क्या होता है कि बैंक ने हम लोग का 140 लोगों का पीओ का बैच था, और बैंक ने सबको कंफर्म कर दिया और मुझे बोला कि तुम काफी भाग गए थे, तो आपका ना प्रोबेशन पीरियड बढ़ा जाएगा, अगर आप इस पीरियड में आप अगर बिहेव अच्छा नहीं करेंगे तो आपको टर्मिनेट कर देंगे। और मुझे पता था कि अगर एक बार कोई बंदा एक गवर्नमेंट सर्विस के लिए डिस्क्वालीफाई होता है, तो सभी सर्विस के लिए डिस्क्वालीफाई होता है वो। तो फिर मैंने, लकीली क्या हो, मेरे लिए पनिशमेंट पोस्टिंग थी वो, मेरा बॉस चेंज हो गए। और शायद फिर मैंने वहां पे ना वहां पे मैंने कोचिंग अटेंड की। तो मैं क्या करता था कि कोचिंग इन द सेंस कि मैं पेपर्स देने जाता था सैटरडे और संडे। वहां पे एक गणेश और एक शंकर एकेडमी थी जो ज्योग्राफी पॉइंट का, क्योंकि मुझे मेरा स्कोर बढ़ाना था। तो फिर वो पीरियड में मैं क्या करता था कि सैटरडे संडे के जो है जाके टेस्ट पेपर देख के आता था, और उससे मुझे काफी फर्क पड़ा है। तो ये जो वो जो प्रॉपर डायरेक्शन जो मुझे फिनिशिंग टच चाहिए था, वो मुझे वहां से मिला। तो इसलिए बोला कि प्रॉपर गाइड और डायरेक्शन आपके लाइफ में बहुत जरूरी है, और आप लकी हो कि मंगेश सर आपको वो दे रहे हैं। तो इस टाइप से प्लानिंग, जो कि आप शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, और पहले लॉन्ग टर्म का प्लानिंग कीजिए कि एक साल तक आपको कैसे प्रिपेयर करना है। नहीं, 1 मंथ का ट्रेनिंग कीजिए कि जिससे मुझे ये मंथ में मुझे हिस्ट्री ज्योग्राफी या ये 2-3 सब्जेक्ट कवर करने हैं। फिर वीकली प्लानिंग कीजिए कि मुझे ये वीक में ये प्लान करना है। तो प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा मुझे लगता है कि जैसे कि आप लोग का लकी है कि आपको टाइम मिला है, तो मुझे लगता है कि पहले आप पूरा सिलेबस कवर कर लीजिए। मेरे साथ में यही प्रॉब्लम हुआ कि मैं जस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में गया, तो मैं ज्योग्राफी मेरे लिए हमेशा वीकनेस रहा है, क्योंकि मैं प्रीलिम पास होने के बाद मैंने ज्योग्राफी ऑप्शन लिया था। तो उस टाइम में ज्योग्राफी भी करो, पबैट भी करो, जीएस भी करो, तो ज्योग्राफी मुझे हमेशा जो मुझे खींचते आया वो ज्योग्राफी हमेशा पीछे लेके आया मुझे। तो जब भी 2-3 मार्क्स से जो मेरा सिलेक्शन जाता था, उसमें ज्योग्राफी मुझे मुझे पबैट में अच्छे मार्क्स रहते थे, जीएस में भी 300 के ऊपर ही रहते थे। पबैट जो था वो मुझे, सर ज्योग्राफी जो था मुझे 260 270 लेके आता था। तो फिर मैंने स्ट्रेटेजी चेंज की। और बाद में फिर मैंने क्या किया कि जैसे हमारे टाइम में मई में एग्जाम होती थी, और जनरली मैं क्या करता था कि जो प्रीलिम्स है उसके के बाद ही ज्योग्राफी शुरू करता था। लेकिन नेक्स्ट टाइम फिर मैंने ज्योग्राफी शुरू से स्टार्ट किया। जब मेरे फाइनल सिलेक्शन जब हुए हैं, तो मैंने ज्योग्राफी पूरा कवर कर लिया था। तो पहले मैं ये कहूंगा कि आप सिलेबस सामने रख के आपका सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, और उसके बाद में फिर आप ना फिर प्लानिंग पे जाइए, शॉर्ट टर्म प्लानिंग और मीडियम टर्म प्लानिंग पे। उसके बाद में मेमोरी मैनेजमेंट मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्रिपरेशन के दौरान, क्योंकि क्या होता है सिलेबस आपने देखा होगा, काफी वहाँ सिलेबस है। तो मैं क्या करता था कि बहुत बार मैंने कुछ लोगों को देखा कि लोग पढ़ते थे, बुक्स पढ़ते थे, कि मैंने, और हम लोग डिप्रेशन जब डिस्कशन करते थे सियाक वगैरह में, तो कोई बोलता था कि नहीं यार मैंने आज ना 2 चैप्टर पढ़ लिए, कोई बोलता था मैंने 3 चैप्टर पढ़ लिए। तो मैं थोड़ा स्लो था पढ़ने में। तो मुझे लगता था कि फिजिकल टारगेट अचीव कंप्लीट करना इज नॉट हमारा टारगेट। कि जैसे क्योंकि क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि नहीं यार मैंने आज जाकर के ना 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। 4 चैप्टर कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें से कितना आपके दिमाग में गया वो इम्पोर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि मेमोरी मैनेजमेंट एंड प्रिपरेशन स्टाइल जो मेरा क्रक्स रहा है, वो इसलिए क्योंकि मैं क्या करता था कि मैं हमेशा हाथ में पेंसिल लेके पढ़ना शुरू करता था, कॉन्सेप्ट में जाता था, बुक्स को जो जो इम्पोर्टेंट उसको हाईलाइट करता था। अगर आप एक चीज पढ़ ले तो आपकी एक बार उसका रीडिंग हो गया, फिर मैं उसको मार्क करता था, वो उसका सेकंड हो गया।
थर्ड में क्या करता था, उसको शॉर्ट लिस्ट बनाता था। तो मैं लिखता था कि इस चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। तो वो थ्री टाइम्स रिपीटेशन होता था। और मेरा मेरा क्रक्स था छोटी डायरीज। फिर रात को मैं क्या करता था कि दिन भर मैंने क्या पढ़ा, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको मैं रिकॉल करता था। नेक्स्ट डे सुबह में वैसे ही करता था कि कल जो पढ़ा है उसको मैं एक बार 10 मिनट में उसको रिकॉल करता था मैं। और उसके बाद में फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर पे जाता था। और आप लोग बिलीव नहीं करोगे कि जिस जिस अटेम्प्ट में मैं सिलेक्शन हुआ है तो मैं बैंक में बैठ करता था। मेरी जो हर सब्जेक्ट की एक डायरीज बनी हुई थी, ज्योग्राफी, पबैट, जीएस। और 2 या 3 पेज में ना, छोटी डायरी के, पॉकेट डायरी के, मेरे पूरे ना नोट्स बने रहते थे। तो मुझे जब भी टाइम मिलता था चाय पीने के लिए जाओ तो मैं अपनी डायरी निकालता था। पबैट का पहला चैप्टर है थिंकर, किसने क्या क्या बोला, वो मेरा मेरा ना 3 या 4 मिनट में ना मेरा पूरा उसका रिवीजन हो जाता था। तो ये जो स्ट्रेटेजी थी वो मेरे बहुत काम आई। उसके बाद में कॉन्सेप्ट, क्योंकि बाद में क्या हुआ कि यूपीसी का जो पैटर्न था कॉन्सेप्ट पे चला गया था। तो मुझे लगता है कि जब आप पढ़ाई करोगे आप कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान दो। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि जैसे सिविल सर्विस की प्रिपरेशन में काफी लोग, किसी का बैकग्राउंड कॉमर्स का होता है, किसी का आर्ट होता है, किसी का इंजीनियरिंग का होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो तुम्हारा कोर डोमेन है, जैसे मेरा इंजीनियरिंग का डोमेन था तो या साइंस बैकग्राउंड था, तो मैंने हमेशा साइंस पे ज्यादा फोकस किया कि अपना जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको आप स्ट्रॉन्ग बनाओ। लेकिन अगर आपको कोई वीक पॉइंट है उसको वीक मत होने दो। जैसे कि हम लोग साइंस बैकग्राउंड से थे तो मेरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिटिकल साइंस वगैरह जो है वो वीक एरिया में था। तो मैंने ये हमेशा कोशिश किया कि इसको मैं ज्यादा फोकस करके, ऐसा ना हो कि ये सेक्शन मुझे कम मार्क्स आए, तो उसको मैं ज्यादा फोकस करके स्ट्रॉन्गनेस को और स्ट्रॉन्ग करो। और वीकनेस को तो आपका कभी वीकनेस मत बनने दो, उसको और स्ट्रॉन्ग बनाओ। तो अगर वो बैलेंस अप्रोच से आप जाओगे तो 100% है कि आपको सक्सेस मिलना ही मिलना है। और आपने और एक चीज रियलाइज की होंगी कि हमारे टाइम में जहां तक जो मेंस का कोर्स होता था, पासिंग जो है 50% ही है। यानी जहां तक मुझे याद है कि पहले अटेम्प्ट में मुझे 935 कुछ मार्क्स मिले थे और 850 860 कुछ तक पास आउट था। और हमें घर से हमारे टाइम में 2100 थे मंगेश, 2100 का स्कोर था ना हमारा जो टोटल मार्क्स थे। क्योंकि ज्योग्राफी 600, पबैट 600, जीएस 600 एंड ऐसे, ऐसे ऐसे राइट। 200, हाँ ऐसे 200, 200, नहीं 300, समथिंग समथिंग है। तो ऐसे यूपीएससी ऐसे का जो वाज 200, ऐसे वाज राइट, 200। तो हमारा जो पासिंग है ना वो 150% ही रहती है। तो आपका जो फोकस है वो आप 60 या 70% पे रखो। क्योंकि मैंने बैंक पे ये वाला अप्रोच यूज किया। जब मैं बैंक पीओ क्लियर हुआ था तो मैंने भी इसमें उसका स्टडी यही किया था कि लास्ट की पासिंग जो है 50% ही होती है। तो मैं 100% सिलेबस के पीछे कभी नहीं गया। मैं 70 पे फोकस किया कि नहीं, मुझे 60 to 70% जाना है। बट अगर आप 60 to 70% सिलेबस पे अगर कॉन्सेंट्रेट करते हो तो आपका स्ट्राइक रेट जो है 95% के ऊपर ही होना चाहिए। ये चीज ध्यान में रखो। 100% सिलेबस कवर करके अगर आपका स्ट्राइक रेट जो है 60 या 70 है तो आपको 60 70 पे ही आएंगे। लेकिन अगर आप 70% भी करते हो और 95 का स्ट्राइक रेट रखोगे तो आपका स्कोर बहुत ऊपर जाएगा। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, सिलेबस इतना वास्ट है कि कवर करना पॉसिबल नहीं होता। तो जो भी आप 60 70% करोगे उसको अपना थोरो रहो, तो उससे आपको फर्क पड़ेगा। तो ये एक स्ट्रेटेजी है। उसके अलावा मेरा और एक कहना है कि हमेशा ना जमीन पे रहो। इन द सेंस कि बहुत बार क्या होता है कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया कि 5 लाख लोग प्रिपरेशन के लिए जाते हैं, हम लोग बोलते हैं कि मैं सिविल से कर रहा हूँ। जैसे मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, इसलिए बोलो, फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू जाने के बाद जैसे हम लोग 3 ही लोग थे, सेकंड अटेम्प्ट में प्री फेल हो गया था मैं। तो कहीं ना कहीं मैं मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस सीखा कि नहीं, यूपीएससी आपको कभी भी गिरा सकती है। यू हैव टू बी ऑलवेज अलर्ट। और आप एग्जाम से बड़े नहीं हो, तो आपको ऑलवेज अलर्ट रहने की। मैंने क्या मिस्टेक की, तो देर में रियलाइज किया कि मैंने क्या मिस्टेक की, मैं सेकंड में फेल हो गया प्रीलिम्स में। क्योंकि फर्स्ट में तो मैं इंटरव्यू तक चला गया था। तो मुझे ध्यान में कि इंटरव्यू होने के बाद जो प्रीलिम्स का पीरियड होता है 1 1.5 महीने का, उसमें मैं और कॉन्फिडेंट रहा। मैंने उसको ध्यान ही नहीं दिया कि मुझे प्रीलिम्स देना है। मुझे लगा कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो तो आप वो गलती मत करना, ठीक है। अरे हमेशा अपने टारगेट पे फोकस रख के और कॉन्फिडेंट मत रहो। अगर आपको किसी सब्जेक्ट पे कम मार्क्स आ रहे हैं तो अपना फॉल्ट रियलाइज करो कि नहीं, मुझे में कुछ गलती है। वो कहीं ना कहीं वो गलती जब, क्योंकि जब तक वो गलती आप प्रिपेयर नहीं करोगे वो फॉल्ट वैसे ही रहेगा।
और आप उसी वजह से आप ना नीचे नीचे आते रहोगे। तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट जो है, तो मैंने हर अटेम्प्ट में खुद को इम्प्रूव किया। जहाँ तक मैं मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था, तो मेरा जो एजुकेशन बैकग्राउंड पे छोटे गांव में हुआ है, गढ़चिरौली में, जैसे कि मंगेश ने बताया कि तो वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड एरिया ऑफ इंडिया अभी भी है। और जब मैं फर्स्ट टाइम इंटरव्यू के लिए गया था दिल्ली में, तो लोग मुझे पूछते थे कि गढ़चिरौली नक्सलाइट एरिया, बोला हाँ मैंने सुना है, और वहाँ पे लोग पेड़ों पे रहते हैं, बोला हाँ मेरा घर भी पेड़ पे ही है। तो लोगों को अजब से लगता था। तो तो ये फैक्ट्स है। तो तो बट मैंने हर बार मैंने खुद को इम्प्रूव किया। और जैसे मेरा बैकग्राउंड जो रूरल था, मैं इतना इंग्लिश में पॉलिश नहीं था। तो कुछ लोग बोलते थे कि जो आपको इंटरव्यू है बहुत इंग्लिश पॉलिश इंग्लिश में देना है, बहुत ये करना है वो करना है। तो कहीं ना कहीं मुझे शुरू के 3 अटेम्प्ट में जब मैं फेल हुआ हूँ, मुझे इंटरव्यू में बहुत कम मार्क्स आते थे। पहले अटेम्प्ट में 114 थे, 127 वगैरह। लेकिन लास्ट के 2 इंटरव्यू ना मुझे इंटरव्यू ने अंदर लिया, उसमें 180 और 174 मार्क्स आए थे मुझे। तो लास्ट के 2 अटेम्प्ट ना मैंने बहुत नेचुरल इंटरव्यू दिए हैं। मुझे टाइम भी नहीं मिलता था, जाके बैठता था, जो मुझे होनेस्ट लगा वही मैं इंटरव्यू दिया मैंने। तो कहीं ना कहीं उसके पहले जो पहला इंटरव्यू था ना, मुझे याद है कि मैं चाणक्य में अविनाश हमारे सर के पास गया था। तो सर ने मेरा इंटरव्यू, उसने बोला कि तुम बहुत फास्ट बोलते हो, और नेचुरली ना बहुत फास्ट बोलता हो। वो मेरा एक्चुअली नेचुरल ओवर द पीरियड मेरी हैबिट डेवलप हुई है। बहुत बार तो आगे वाले को समझता भी नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मुझे वाइफ थोड़ा समझ लेती है, लेकिन अभी भी वो स्टाफ जो है ना मेरे ऑफिस के, वो उनको समझ में तकलीफ होती है। कभी कभी मैं फास्ट बोल लेता हूँ। तो उस टाइम मैंने खुद को इतना प्रिपेयर कर लिया था कि धर्माधिकारी सर मुझे बोले, तुम ना अटल बिहारी वाजपेयी से भी स्लो बोलते हो। तो मेरा यही कहना है कि प्रैक्टिस, यानी अगर तुम्हें कोई फॉल्ट है तो उसको तुम रिपेयर करो, तो उसमें बैठे मत रहो। अगर आपको कहीं ऊपर जाना है तो अपने यहाँ का जो भी फॉल्ट है वो तुमको ये करना है। तो इस तरफ से ये मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। और यही बोलूंगा कि जमीन पे रहो, फॉल्ट को रिपेयर करो, और सक्सेस आपके हाथ में है। मैं खुद 4-5 अटेम्प्ट दिया हूँ। और मैं जब आप सर्विस में आओगे, तो मैं आपको यही बोलूंगा, इट इज द बेस्ट सर्विस। यानी मैं आरएस में हूँ, तो हम लोग का ट्रेनिंग, अभी मेरे काफी बैचमेट्स अभी यूएस वगैरह में है। हमारा पहला बैच था जिसका ट्रेनिंग यूएस में हुआ है। यूएस, मलेशिया, दुबई, हम लोग वहाँ ट्रेनिंग किए हैं। और अभी मेरे पास काफी बड़ा चार्ज है, मैं नासिक में पोस्टेड हूँ। तो ये जो भी पोस्ट है सिविल सर्विस की, वो सही में क्रीम पोस्ट है। आप जब अंदर आओगे तब रियलाइज करोगे कि आप कितने पावर्स है। आप लोगों की लाइफ काफी एक्सटेंड तक चेंज कर सकते हो, और वो अगर इसमें है, तो आप एक सही एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। और मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और फोकस रहे कि पेशेंस से अपने डायरेक्शन पे जाओ, और कभी गिव अप मत करो। आप 100% सक्सेसफुल रहोगे। तो इतना कहते हुए मैं मेरी तरफ से मंगेश सर को भी थैंक्स दूंगा कि सॉरी पिछले 2-3 साल से हम लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाए। एक्चुअली तूने काफी बोला था, लेकिन इस बार बोला एक्चुअली मैं घर में ही हूँ, मैं गढ़चिरौली आया था, मुझे लगा। लेकिन कल मैं बोला कि नहीं, मैं एट एनी कॉस्ट मुझे लोगों से प्रिपरेशन करना अच्छा लगता है, और लोगों को यानी गाइड करना अच्छा लगता है। कल मंगेश सर से भी मैंने एक तरह एक न्यूज ये किया था कि हम लोगों ने भी बच्चों के लिए यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स एक एनजीओ शुरू करके हम लोग प्रिपेयर यानी लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। क्योंकि मेरा ये कहना था कि गढ़चिरौली से मैं आया हूँ, तो मैं पे बैक टू सोसाइटी करूंगा, यानी मैं हो गया तो मैं चला नहीं जाऊंगा। तो हम लोग 3-4 साल से इस पर काम कर रहे थे, तो इस बार काफी लड़के निकल के आए हैं। तो अपने हिसाब से मैं कोशिश कर रहा हूँ। और थैंक यू मंगेश बुलाने के लिए। और मेरा नंबर या सर या के पास तो मैं अब शेयर भी करूंगा आपको। जब भी मुझे काफी लोग फोन करते रहते हैं, जब किसी को कुछ भी जरूरत हो तो हम मैं ऑलवेज आई एम रेडी देयर। तो इतना बोल के मैं ये करूंगा। हैंड ओवर टू मंगेश सर। या थैंक यू वेरी मच अभय and see this is very politely and he discussed very focused approach with all of you. अभी अभय ननावरे सर ने आप लोगों के साथ बहुत ही जो स्ट्रेटेजिक और प्रोफेशनल जो अप्रोच है टुवर्ड्स यूपीएससी प्रिपरेशन, वो क्या है, उन्होंने ये बताया है कि खुद की जो लूप होल्स है, खुद के जो लैकुनास है, वो भी हमने देखने चाहिए। हमने ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। इवन दो हमारा सिलेक्शन होता है तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए।
हमारे फॉल्ट्स जो है वो हमने इग्नोर नहीं करने चाहिए। अगर हमारे इसमें कुछ कमियां हैं तो उसके ऊपर हमने काम करना चाहिए। जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है उसको अच्छे से और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, जो वीक पॉइंट्स है उसको वीक नहीं छोड़ना चाहिए, उसको भी स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। उन्होंने बहुत ही मतलब उन्होंने कहा कि 3-4 अटेम्प्ट में सक्सेस मिला, लेकिन उनका जो सक्सेस स्टार्ट हुआ है, तो फर्स्ट पीओ की पोजीशन प्रोबेशनरी ऑफिसर एसबीआई में 2006 का सिलेक्शन था वो, राइट। सो मुझे लगता है कि ही गॉट सक्सेस इन अ लिमिटेड पीरियड। ओके, मींस एक जो साइजेबल एक पीरियड होता है कि 2 साल की प्रिपरेशन में उनका कहीं ना कहीं तो भी सिलेक्शन हुआ। उसके बाद उनका जो सिलेक्शन है बाकी सर्विसेज पे हुआ, रेलवे में हुआ, सिविल अपने कंटिन्यूटी मैटर्स लॉट। सो उनके माध्यम से मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि कंटिन्यूटी, कंटिन्यूअस एफर्ट्स, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, प्लान, स्ट्रेटेजी, राइट, नेवर गिव अप वाला जो माइंडसेट है। ओके, सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू योर प्रिपरेशन। So thanks a lot, dear friend, for guiding students of Sambodhi Career Academy from Gadchiroli. Okay, अभी वो गढ़चिरौली में है, अपने होम टाउन में है वो। और उन्होंने कहा है कि वो आप लोगों को आगे चल के भी गाइड करेंगे। तो संबोधि से एसोसिएटेड जितने भी ऑफिसर्स है, सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी लेवल के भी ऑफिसर संबोधि से जुड़े हुए हैं, और वो हमेशा स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं। तो अभय सर भी आप लोगों को इसके आगे भी गाइड करते रहेंगे। बस आप लोगों को खुद को तय करना है, मतलब हम लोग तो आपके सपोर्ट में है ही, लेकिन आप लोगों को ये जो गाइडेंस है उसका बेनिफिट कैसे लेना है। जैसे मेरे पास काफी स्टूडेंट्स आते हैं, अभय, आई वुड लाइक टू शेयर दिस थिंग, कि जैसे पैंडेमिक स्टार्ट हुआ, एंड व्हेन द आफ्टर पैंडेमिक फ्रॉम 3rd April 2020 वी स्टार्टेड अवर सेशंस ऑनलाइन। और काफी सारे स्टूडेंट्स दे आर वाचिंग अवर वीडियोस on our YouTube channel. I am uploading all videos of our officers and our classroom coaching. So 200 से ज्यादा वीडियोस हमारे IAS संबोधि न्यूज इस YouTube चैनल पे है, और काफी जो सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स है उन लोगों के भी वीडियोस है, कमिश्नर रैंक के ऑफिसर्स, हमारे काफी सारे बैचमेट जैसे धनंजय है, धनंजय बंजारी, डॉक्टर उपसेन बोरकर, ओके, दोज ऑल दे आर आल्सो एडिशनल कमिश्नर्स। Dr. Hemant Pude, Commissioner of Provident Fund, Dr. Manchakipar, IPS, now DIG, then Milind Dumbere, who is also DIG of Daman and Diu, and our students, those who qualified from Sambodhi, Jay Wagmare, who qualified in a first attempt and now Deputy Commissioner of IRS Customs at Mumbai. डॉक्टर रामदास जैसे वो क्वालिफाइड इन सेकंड अटेम्प्ट IRTS नाउ पुणे। तो ऐसे काफी सारे ऑफिसर्स के मैं नाम लूंगा कि they imparted their guidance on the platform of Sambodhi in online manner, in offline manner also. Just recently, our Shilu Chande sir, he visited to Thane branch, and he motivated students at Thane branch. So काफी सारे ऐसे ऑफिसर्स है, काफी सारे स्टूडेंट्स है जिनका गाइडेंस ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से मिलता है। और उसके वजह से क्या हुआ है कि लास्ट 2 to 3 इयर्स में इनफैक्ट ऐसे स्टूडेंट्स भी संबोधि से जुड़े हैं जो रिपीटर्स है, जिन्होंने पुणे में कोचिंग की, यूपीएससी या एमपीएससी की, हाईफाई सोकॉल्ड जो इंस्टीट्यूशंस है, जो बहुत ही नामचीन इंस्टीट्यूशंस है, लेकिन नामचीन होने के बाद आपको भी पता है कि प्रॉपरली गाइडेंस का लेवल क्या होता है। हर जगह पे केवल नाम से नहीं होता है। तो दिल्ली के भी इंस्टीट्यूशंस से पढ़े हुए स्टूडेंट्स अभी संबोधि में रिपीटर्स है, ठाणे और मुंबई के तो है ही है। तो काफी सारे स्टूडेंट्स ये सारे लेक्चर्स, ये सारा मोटिवेशन मिलने के बाद अप्रोच करते हैं, और एक बहुत ही प्रॉपर गाइडेंस संबोधि के माध्यम से उन्हें इंश्योर होता है। और एक बहुत कम स्टूडेंट्स होने के बाद भी संबोधि के जो रिजल्ट्स है वो बहुत अच्छे हैं। ओके, सो व्हाट इज माय अपील टू ऑल ऑफ यू, कि हमारे पास इतने सारे ऑफिसर्स है, इतने अच्छे गाइडेंस करने वाले हैं जो ग्राउंड लेवल से आके अभी हायर लेवल पे है। जैसे अभी अभय नन्नावरे सर एकदम ग्राउंड लेवल से आके अभी हायर लेवल पे है। उन्होंने बताया कि यू कैन डू प्रोडक्टिव थिंग्स थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन वंस यू गेट इनटू सर्विसेज। तो आप लोगों को ये बात समझनी है, ठीक है। आप लोगों ने
ये जो अपॉर्चुनिटीज आप लोगों को मिल रही है, जैसे हम लोग जैसे मैंने भी इंजीनियरिंग करने के बाद स्टार्ट किया, तो मुझे नागपुर में 1 साल गाइडेंस नहीं मिला था, तो मेरा 1 साल वेस्ट गया। फिर मैंने जर्नलिज्म किया, फिर मैं दिल्ली में गया, लेकिन दिल्ली में भी कोचिंग लगा के आप ये मत समझना कि वहाँ पे बहुत अच्छा कोचिंग होता है, या आपको 500 की बैचेस रहती है एंड पर्सनल अटेंशन का कोई पता नहीं होता है। वहाँ पे सिर्फ एक मार्केट क्रिएट हुआ है। आज भी मेरे पास दिल्ली में 3-4 साल जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, दे आर माई रिपीटर स्टूडेंट्स, ओके, एंड आई सेंड देम फॉर इंटरव्यू। मेरा गाइडेंस लेने के बाद या संबोधित के बाकी ऑफिसर्स और फैकल्टीज का गाइडेंस लेने के बाद वो इंटरव्यू तक तो गए। एक स्टूडेंट लास्ट ईयर 5-6 मार्च से उसका सिलेक्शन रुक गया, लेकिन वो प्रीलिम्स क्वालिफाई हो, एंड दिस वेरी थिंग कि you should have a determination, okay, you should have a proper determination, and after determination you should continue your preparation under proper guidance, okay. So अभी मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि आपके अगर कुछ क्वेश्चंस है तो आप अभय सर से पूछें, और उसके बाद फिर हम या प्लीज आस्क क्वेश्चन। चेतन, आर्यन, अमित, अमीषा, Aditya, Prerna. See, this is a platform. Yeah, this is a platform where you can ask questions. So please ask questions. Don't miss this opportunity. Yeah, Chetan. Yes, sir. Thank you, sir, for such a great session. So my question is, the one that you have already addressed, that you were trying for IAS, but somehow you got it into or got an IRS. Even I have the same aim to get into IAS, but you know, even after trying for a couple of years and giving your 100%, and if you still don't get that, should we keep trying, or like um, Okay. because Actually, the main, I mean, the objective or our the emotion is to have your um work in different sectors. For example, if you get into railway service, so you won't be able to do other kind of activities, for example, for the farmers and everything. So coming into IAS, you have the objective that you want to serve for the for so many people in so many different sectors. But if you land up in some in a different service, uh, you are not able to achieve your objective, or somehow you feel that I was not able to serve these people. So what do you think? no, actually, let first clear that uh, uh, in the bureaucracy for the central government services, after some time you can go for deputation at any places. Like in IRS also now, the new additional commissioner of Mumbai, he is IRS officer, Mumbai corporations. Okay, so except some initially district posting, like now I am deputy secretary to government of India, I can go to any ministry on deputations, and except barring some few 4 5 years, after a certain time all services are equals, means you can go to the, like I can go to the ministry as deputy secretary. There are so many my batchmates who are there in the deputy secretary rank, general secretary rank. Some are on the deputation with World Bank, IMF, and other institutions. So that channel will be open up a certain time. But it's fact that initially, like district administration, that is with the IS people only, like CO and collector. That posts are with the them only in the English spaces. So you can, as a other service officers, you can't enter there. But after certain time, all services are you have a lot of opportunity. It's not mean that I only in the income tax only. I can go to state government deputations. Like my senior is now additional commission to Mumbai corporations.
some are with the professional bodies like JNPT, SEBI, RBI, and PUSUs, and then some are with the ministry at the Delhi level. So changing the people's life is not only you have to work in the ground level. Like one district collector, he can implement some schemes, okay, at his particular locations, jurisdictions. But apart from that, you can give new ideas that came from the ministry level. Like as a deputy secretary, you can initiate some schemes like Jan Dhan Yojana. That was suggested by some deputy secretary, joint secretarial officer. So that implement throughout the India by the field formations. Okay, so sometime on the top also, at policy level, you can give new ideas. So directly or indirectly you can make contributions. For example, as a revenue services, actually it is a highly undermined service in India. But I just explain you. Go just consider your family. Your father is a earner, and you and your other family, they are doing the expenses, okay, right? So in the government context also, IRS is a service who collect the tax for the nations, and due to Yeah. that collection only, other people, they are doing the expenses. Once Yes, yes. they stop earning, you can't make expenditures. So as a IRS officer, you can contribute a lot. Like me, like this time I was having the charge of Aurangabad division also. So I almost collect a revenue of around 950 crores. I had that reduction level. So from there also you can do a lot of things. Even now I'm focusing. Now I'm feeling that my service is. I'm personally very happy because that field touch is not there, but policy levels are in like tax collections. You saw that in last 3 4 years there are huge tax collections in India, despite the COVID and all that, because there are so many policy changes at the top level. So once the economy grows, because we have done 1 month, 1 week training at US now, you saw and found that US IRS is the most powerful service, because in India also black money is very huge. Means unaccounted economy is very huge in India. So in last 3 4 years, uh, due to the system changes or some policy changes, you saw that despite the uh, uh, industrial growth, the collection is very huge. So you can do as I have you can do your job. But apart from that, my personally I am happy with my job because I found so many professionals work here. I was almost work in investigation for last 5 years. I was in raid posting. I used to come Thane, Mumbai, and all that. So apart from that, I also that you have the field touch. You can do for that. You can do for the people directly, but indirectly also you can, by making some policy changes or some new you by suggesting some new plans, you can do all India ramifications. So uh, what I suggest you, though it is fact that the IRS is a very good service, no doubt, but getting IRS or any other civil services is not a disadvantage, because now if I want, I can go for a deputation also. If not getting IRS is not a issue. Okay, you can enter at central level at any places, because now in last 3 4 years I found that there are so many officers who are working as a joint secretary in the central government. They are from IRS, IS, apart from IS, even railway account, postal. So that stream is open after some time. So Yes, yes. there is no big disadvantage. Okay. Thank you, sir, for that wonderful answer. One more thing I would like to ask you. Sorry for the background noise here. So I would like to ask you the preference of your service and what one should think while setting their preferences. I mean the priority No, wise. no, actually, you have to go for your choice and what are your choices and your interest, area of interest. I can tell you in 2009 attempt,
I not given IFS as my choice. Actually, I was qualified for that, but I'm not given IFS because I was not interested to go and work abroad. Because I want to work here only. That was my personal choice. Okay, IPS was my choice, but I was medical unfit. That was fact. So but generally people they go for the IS because IS they have a larger ramifications. But one disadvantage in the IS also there ki, like sometimes what happened you have to go in northeast area. I have so many officers who are posted in northeast area and they are not happy with their jobs because you have to spend most of your period in the that area only. So I think just you have to check your priorities and then you do the preferences. Just sometimes what happened when I started the civil service, I also think that it's a good service, no doubt, but I mostly saw it as a service, and not the personal full life. So uh, so sometimes people they like to work in the metros. I think you're from Thane and Mumbai. If suddenly you posted in Gadchiroli and all that, and if they ask you to go work, stay there for 6 years, so it will be difficult for you. So like my service, you have that advantage. Okay, we never have the posting at small towns, so that advantage is there. As they have different advantage, you are a king of the districts. But my personal experience that I saw that some officer I went last time election in Bihar, they're from Maharashtra, they are not happy there because other infrastructure also not there. That is the issue. Okay, you are DM there but not having proper school there, and not having good malls and all that. So it's sometimes no, that is reality Yeah, actually. yeah. Sometime I went one time I was went to the Tamil Nadu, that my senior was there. I went with his family. He was so happy, and he used to call us. So the reason was that there was no having close friends there, no having to speak with his family and all that. So sometimes this is also there. One of my junior, he was in Manipur. Now he just transferred to he wanted to come to Maharashtra. He's from my district only. He wanted to come to Maharashtra because from last 6 years he is in Manipur only. So you just give. I think there should be some there should be mixes. Means some priority mix should be there. If you wanted to stay in the metros and all that, then you go for the IRS. Otherwise, if you want to really you want power and work for the doctor and all that, you go for the IS. If you don't want to work in northeast and all that, so after some that priorities will be changed. Why am I happy with the IRS now? Because I have banking background. Actually, that's why I'm doing now MBA also. So this is a very technical service. This IRS is a very technical service, and you have to apply your mind because a lot of balance sheets and all are there. So my background that always helped me. I having that age over the my other of his batchmates. So and now the economy is growing. So always in the growing economy, this financial services having more importance. Right. So that chai should be like that only, mix of all. Yeah. So, Okay. yeah, Chetan has asked very nice questions. Nice question. Yeah. Any question? It is a very relative questions. A very Yeah. relative question. No, Chetan is a very, what you can say, I see Chetan and many other students, those who are very active and very potential students. So Chetan could be my next officer, right, Chetan? Yeah. And In Chetan, next. Chetan, one more thing is there. Getting his eye is not okay. There should be dreams. Okay, that is not a crime, but it is not always means your all dream will be fulfilled, right? Right. So my approach is that whatever job you got, just try to enjoy the job. Hmm. That is the most important. Then you will be highly satisfied with the job. Whatever job you got, whether you will go to civil service or you want to become a lecturer, but you just start enjoying your job, then you will be satisfied. Yeah. Now, Absolutely. any question to anybody? Aditya, Amisha, Amit, Aryan, Nisha, Kinnari, Bisma, Chetana, Sarang.
Tejashree, Vaishnavi, Vishakha. Okay. And no questions? Sir, while others are asking, I would like to take one more chance. Okay. So, sir, any strategy you would suggest for main papers, main paper writing, just to manage the time and everything? Whatever strategies you could think on, suggest us. Okay, Chetan, frankly, I tell you because I don't know now what pattern is there now. But our time in the mains, okay, there are general studies and we have two options. Okay, in general studies, what happened? There are 2 marks questions, 5 marks questions, 10 marks questions, and it was around 300 marks papers, right? And for 300 marks, we have time of 180 minutes, right? Hmm. So almost something some I exactly I am not remembering, but almost 0.45 seconds for 1 marks. That was the ratio that time. So accordingly, we prepare the while preparing. I just try to make the we formulate some strategy. Like for example, 2 marks question was there. Small bits. Mangesh, bits are there now, or it's No bits. Now bits are see, given up. see, now they have divided mains into 9 papers. Okay. So Yes, there yes. are general studies. General studies is having 4 papers. General Okay. studies 1, which consists of history, geography, social issues for 250 Hmm. marks. And they are asking 150 words questions and 250 words questions. Okay. For 10, mostly they are asking 20 questions and for 3 hours. Okay. Second paper, constitution, governance, and international relations. Third paper is for economics, science and technology, environment, biodiversity, okay, internal security, disaster management, वगैरह वगैरह. And fourth paper is related to ethics and aptitude and integrity. So these are 4 papers for general studies, 250 marks each, and 3 hours each. Right. And sub questions like 20, 30. 150 words and 250 words. 10 marks and Okay. 15 marks. असं डिव्हिजन Okay. आहे. आणि ऑप्शनल एकच आहे. ऑप्शन मध्ये आता जसं आपल्या वेळेस 2 ऑप्शन होते है ना, जसं आता माझे पण हिस्ट्री मराठी होते. मी सुद्धा you have mentioned that you was one among the topper in public administration. So I also scored 350 marks in history during that period. I know that you was a history champion. Chetan. Now option is 1 only, and we have essay paper. So in essay there are 2 sections, and you need to write at least one essay from each section. So 125 marks. असं आहे. आणि इंग्लिश अँड लँग्वेज दीज आर क्वालिफाईंग पेपर्स. आणि बाकी तर मग इंटरव्ह्यूला 275 मार्क्स. सो 1750 प्लस 275 2025 असं टोटल आहे. तो तर 2 बीट्स वगैरे जे 2 मार्क्स आपल्या वेळेस होते ते आता नाही. हॅलो चेतन, तो आहे. Yes sir, yes. चेतन, व्हाट वाज माय स्ट्रेटेजी वाज कि एक तो जनरली हमारे टाइम में ना अक्टूबर में एग्जाम रहते थे, ठीक है, दिवाली के आसपास शुरू होती थी. तो हमारा टारगेट ये रहता था कि अगस्त तक तुम्हारा, अगस्त या मैक्सिमम सितंबर फर्स्ट वीक तक सिलेबस खत्म होके एटलीस्ट 2 रिवीजन होने चाहिए. मेरा लास्ट में स्ट्रेटेजी वही था कि मुझे टाइम नहीं मिलता था. एटलीस्ट मेंस तक तुम्हारे 2 रिवीजन हो जाने चाहिए. और मैं जैसे मैंने सर को बोला कि हमारे टाइम में 2 मार्क्स 5 मार्क्स से भी क्वेश्चन देता हूँ. तो फोकस रही के जैसे जो टाइम लिमिट है या जो मार्क्स लिमिट है, अगर तुमको 150 वर्ड्स या 250 वर्ड्स ही है तो उसको उतने तक ही सीमित रखना, ठीक है. यानी 150 की जगह कुछ जैसे हम लोग जो यूनिवर्सिटी में करते हैं ना, हम लोग का स्ट्रेटेजी क्या होता था कि पेपर भरते रहो बस, सो दैट कि जितना तुम लेंथी लिखोगे उतने मार्क्स मिलेंगे. ये हम लोग का स्ट्रेटेजी होता था. तो वो नहीं होना चाहिए. अगर 150 है तो 155 या 60 बहुत हो गए. तो लेकिन तुम उसको ऐसे बना के रखो सो दैट कि वो 150 वर्ड जो है वो बहुत ही प्रिसाइज होने चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल बताता मैं कि अगर बीट्स में हमको, अगर उस टाइम में महात्मा फुले पूछा जाता था कि महात्मा फुले का कॉन्ट्रीब्यूशन 2 मार्क्स के बीट्स में आना है, तो आपको 10 वर्ड में ये लिखते हैं कि उनने क्या किया, उनके बुक्स कौन से थे, उनने कब स्कूल शुरू की, और उनका बस जो कॉन्ट्रीब्यूशन है. तो वो उतना स्पेसिफिक ऐसे नहीं कि तुमने पूरा 10 पेज लिखे, 10 लाइन लिखे. तो 2 लाइन में ही उनका जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन, सत्य समाज था जो उनने इरिगेशन के लिए काम किया था या लेबर्स के लिए काम किया था,
और उनका गुलामगिरी का बुक्स था। और कब स्कूल की ये यानी यानी वो जो वर्ड्स है ना वो 20 के 25 के ऊपर देने चाहिए, वो फोकस रखो। यानी जो लिमिट उसको तोड़ना नहीं, और उसका जो कंटेंट है वो क्वालिटी होना चाहिए। सिर्फ राइट, सिर्फ पेज भरने के लिए मत लिखो, क्योंकि एग्जैक्टली, अल्टीमेटली उससे उससे फर्क नहीं पड़ता। यानी वो या चीज इम्पोर्टेंट है। और या बाकी आई तो थिंक स्ट्रेटेजी चेतन। की। हाँ। हम्म, चेतन वैसे ही कि मेरा ये कहना है कि जैसे हमारे टाइम में मेरा टारगेट था कि एटलीस्ट 2 रिवीजन हो जाने चाहिए फाइनल पेपर के पहले। तो वो स्ट्रेटेजी रखो। बिल्कुल बिल्कुल, या Okay. Okay. Chetan, I think you got your answer. Now, any question to from any students, any other student? Because Chetan asked 3 questions on the behalf of you, I think, all of you. See, you need to took a chance. You should take a chance and you should ask a question. नहीं, किसी वैष्णवीचा एक सुनो, क्वेश्चन आहे. किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा है मेरे से, ड्रॉप बॉक्स में कुछ है हा मंगेश? हा हा IAS, IRS, IFS या सर्व सर्व्हिसेसचा ट्रेनिंग पिरियड आणि प्रोबेशन पिरियड काय असतो सर? ओके, हा, हाँ यांचं ट्रेनिंग आणि प्रोबेशन पिरियड काय असतो या सगळ्या सर्व्हिसेस? हाँ, या हे बघा, ऑलमोस्ट सर्व्हिसचा जो ट्रेनिंग पिरियड आहे ना तो 2 वर्षाचा राहतो. त्याच्यामध्ये जनरली अगस्त ला ट्रेनिंग शुरू होते. जनरली अगस्त में ट्रेनिंग शुरू होती है. 4 महीने का फाउंडेशन ट्रेनिंग होता है. फाउंडेशन ट्रेनिंग सभी सीरीज को ऑलमोस्ट कॉमन ही होता था, लेकिन अभी बीच में ना स्ट्रेंथ काफी बढ़ गई थी. जैसे हमारे टाइम में भी करीबन 800 वैकेंसीज थी, तो उन्होंने अलग अलग 2-3 जगह किया था उसको. और उसके बाद में उनका इंडक्शन ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग है. जैसे आईएलटीएस का ट्रेनिंग रहता है ऑलमोस्ट 16 महीने का, जो कि हम्म, एनआईटी में होता है, नेशनल एकेडमी डायरेक्ट एक्सेस नागपुर में होता है. आईएएस का मसूरी में होता है, जहाँ पे उनको जो फील्ड के जो डिफरेंट एक्ट्स है वो उनको पढ़ाए जाते हैं. लैंड एक्ट है, लैंड रेवेन्यू एक्ट है. और जैसे हम लोग का जो कोर डोमेन है इनकम टैक्स, तो हम लोगों को 16 महीने नेशनल एकेडमी डायरेक्ट एक्सेस में नागपुर में पूरा इनकम टैक्स एक्ट है, वेल्थ टैक्स एक्ट है, या कॉर्पोरेट, या फिर अकाउंटेंसी है, या कंपनी लॉ है, इस सब से हमको पढ़ा जाता है. वो जो स्पेशलाइजेशन वाला पार्ट है वो ऑलमोस्ट सभी का 16 महीने का होता है. पुलिस का हैदराबाद में होता है, उनका भी 16 महीने का ही होता है, जहाँ उनको फिजिकल ट्रेनिंग या शूटिंग वूटिंग सब पढ़ा जाता है. तो इस टाइप से हर सर्विस जो है उसकी एक सेंट्रलाइज एकेडमी है. जैसे मसूरी में आईएएस की है, हैदराबाद में आईपीएस की है, आईआरएस आईटी की नागपुर में है, फिर कस्टम की फरीदाबाद और बॉम्बे में है. देन बाकी सर्विस की भी छोटी छोटी सबकी है, रेलवे की बड़ौदा में है. तो उसको वहां पे उनका स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग होता है, और 4 महीने का फाउंडेशन ट्रेनिंग होता है. तो ऑलमोस्ट एक 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड, 20 महीने से 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड होता है. और वही प्रोबेशन पीरियड होता है, उसके बाद फिर आप कंफर्म हो जाते हो, फिर आपको फील्ड पोस्टिंग मिलता है. येस. सो दिस इज आंसर. ओके. अच्छा, अमितने एक क्वेश्चन विचारला Sir, आहे इंटरव्ह्यू मध्ये. हा, इंटरव्ह्यू मध्ये कशा प्रकारचे क्वेश्चन्स विचारले जातात, अमितने विचारलेला आहे. ओके. हम्म, अभी अभी बेसिकली ना इंटरव्यू जो है ना, एनीथिंग बिलो सन जिसको बोलते हैं ना, वो कुछ भी पूछ सकते हैं. जैसे मेरा जो इंटरव्यू था, वो जो मंगेश जो बोल रहा था ना, तो मेरा मैक्सिमम इंटरव्यू तो गढ़चिली से तो नक्सलाइट्स पे ही गया है. तो एक दो हम्म, बार दोनों इंटरव्यू वैसे ही हुआ था कि नक्सलाइट्स ज्यादा पूछा गया. लेकिन जनरली अगर आपको इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना है तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपना बायोडाटा सामने रखिए. और हम्म, वहां से मैं क्या करता था कि भाई शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन बनाता था, क्योंकि जनरली 5 लोगों का पैनल होता है वहाँ पे. जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा बर्थ है 1980s का, तो उसको कुछ रिलेवेंस है क्या, मेरा नाम को कुछ रिलेवेंस है क्या. तो हम लोग क्या करते थे कि एक बायोडाटा सामने रखते थे. और जैसे मेरा मेरा जो एजुकेशन गढ़चिल्ली भी हुआ, तो फिर गढ़चिल्ली ऊपर में क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं. नक्सलिज्म एक हो गया, यहाँ ट्राइबल के जो मालन्यूट्रिशन से इश्यूज है, उसके अलावा फिर सोशल में सर्च है यहाँ पे, या फॉरेस्ट गढ़चिल्ली का अच्छा है. तो उस सब से हम लोग मैं क्या करते थे कि उसके क्वेश्चन बनाता था. और वो क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है उसके फिर हम लोग स्टैंडर्ड उसके आंसर बना देते. गढ़चिल्ली में अनएम्प्लॉयमेंट है. उसके अलावा जैसे मेरा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का क्या मतलब होता है, कहाँ से मैंने कंप्लीट किया है, फिर उस पर क्या डोमेन एरियाज है. और उसके अलावा फिर आपका अगर आपके जो ऑप्शंस है, ज्योग्राफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसके कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं. मोस्टली करंट अफेयर के बारे में पूछते हैं. और वो या फिर आपकी हॉबीज है. जैसे मुझे पूछा गया था कि क्रिकेट था उस टाइम में, और आईपीएल जहां तक मुझे ख्याल है 2008 में शुरू हुआ था. मुझे मेरा काफी इंटरव्यू आईपीएल पे हुआ है. क्रिकेट में खेलना मुझे पसंद था, मैं यूनिवर्सिटी के लिए क्रिकेट खेलता था. तो उसके ऊपर पूछा गया. देन आईपीएल का के बारे में उस टाइम पूछा गया था कि आईपीएल जो है और कमर्शियल, उसका क्रिकेट पे इम्पैक्ट क्या होगा. तो मैंने उस टाइम भी बोला था कि टेस्ट क्रिकेट में इसका काफी इम्पैक्ट होगा, और वो हो भी रहा है.
अगर आप वेस्ट इंडीज की टीम देखोगे या बाकी टीम देखोगे कि अभी लोगों को इजी 20 ओवर का मैच चाहिए रहता है, तो जो टेस्ट क्रिकेट का जो स्किल्स है वो डाउन हो रहा है। तो उस टाइम मैंने वो चीज मैंने बोली थी, जो कि अभी आज अपने को अभी रिफ्लेक्ट हो रही है। तो आपकी हॉबीज, आपका एजुकेशन, आपका सिटी और आपका बैकग्राउंड जो है, आपके मदर के बारे में, फादर के बारे में, एजुकेशन एंड कभी कभी चॉइस के बारे में पूछा जा सकता है। जैसे मुझे पूछा गया था कि मेरा जिसने इंटरव्यू लिया था, वो मैडम का मुझे नाम याद नहीं आ रहा, तो शी वॉज IAS ऑफिसर, वो पैनल हेड जो थी। तो मुझे वही डर था कि अगर वो आएंगी, तो मैंने तो IFS का ऑप्शन देख ही नहीं रखा था, तो शायद मुझे उस पर खींच ले वो। बट मुझे उन्होंने पूछा तो मैंने बोला मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे मुझे IFS में इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि जो मैंने सुना था कि मैक्सिमम ने बाहर में रहना है, तो मुझे ही रहना था। तो मुझे ये डर था कि मुझे कहीं कम मार्क्स ना दे दे वो, उसका IFS था। पर ऐसा कभी नहीं हुआ, तो मुझे अच्छे मार्क्स मिले हैं। तो इस टाइप, और मैक्सिमम करंट अफेयर पे पूछा जाता है। तो इस टाइप से आप क्या करना, जो आप बायोडाटा भरोगे उससे आप एक एक पकड़ के ना खुद से क्वेश्चन पूछो। मैं क्या करता था, खुद ही क्वेश्चन बनाता था और आईने के सामने खड़ा होकर खुद ही उसका आंसर दे देता था, जो मेरी हॉबीज है, ये है वो है। तो इस सबसे वो खुद ही पूछ सकते हैं, या कोई टॉपिक्स में भी कुछ पूछ सकते हैं ना, ऐसा कोई जनरल डिस्कशन भी होता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि इंटरव्यू के लिए ना आप नेचुरल रहो, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था कि नेचुरल रह के आप अगर आप इंटरव्यू दोगे ना, तो जरूरी नहीं कि आपको हर क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। अगर नहीं है तो नहीं है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो आपका पर्सनालिटी टेस्ट देखते हैं। और एक चीज जो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में गलती की थी, अगर कोई चीज आपको नहीं आती तो ना झूठ मत बोलना। मेरे पहले इंटरव्यू में वही हुआ था जहां मेरा इंटरव्यू खत्म हो गया था। एंड अदरवाइज साल में फर्स्ट अटेम्प्ट में जो निकल गया 2 मार्क्स से गया था, उस टाइम में ना मुझे ये आदि के बारे में पूछा गया था। तो मैंने बोला कि हाँ मैंने पढ़ा है। तो उनने मुझे मुझे स्टोरी बताओ, मैं आगे की 3 ही लाइन बोल पाया मैं। तो दे रियलाइज कि मैंने कुछ तो झूठ बोला है। वही मेरा इंटरव्यू खत्म हो गया। तो मैं यही बोलूंगा, उसके बाद मैंने आगे के इंटरव्यू में यही स्ट्रेटेजी रखा है कि नहीं आता है तो प्यार से नहीं आता करके बोल दो, गलती से झूठ मत बोलना। वहीं पे आपका इंटरव्यू खत्म हो जाएगा और आपका नेगेटिव में चला जाएगा। तो शायद मेरे अटेम्प्ट में, पहले अटेम्प्ट में, वो एक दो जो गलती मेरी हुई थी, पहले एक थी और दूसरी प्रीलिम के लिए प्रिपरेशन नहीं करना। तो इंटरव्यू वही अप्रोच रखो। मुझे लगता है कि आपको एकदम फ्लुएंट इंग्लिश आनी चाहिए। लोग टाई वाई, तो मैंने कभी टाई नहीं पहनी, ये फैक्ट है, क्योंकि मुझे ना डिस्कम्फर्ट होता था। अभी भी नहीं पहनता हूं मैं, तो मुझे ना गले में थोड़ा ये लगता था। तो पहले 1-2 अटेम्प्ट में मैंने ट्राई किया था। फॉर्चुनेटली मेरा बैकग्राउंड इस तरह था। तो फिर इसके 2 अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ, तो मैंने कभी टाई नहीं पहना। हाँ, कोट पहन के गया मैं, पर टाई नहीं पहना, क्योंकि मुझे डिस्कम्फर्ट लगता था। तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। यानी मेरा पर्सनल ओपिनियन तो यही है। अभी बाकी लोग क्या बोलेंगे उसके बारे में बोल नहीं सकता मैं, क्योंकि अल्टीमेटली वो आपके पर्सनैलिटी चेक कर रहे हैं। आपका यानी आपका ये ड्रेस सेंस वगैरह जो है ना, वो सेकेंडरी। उनको पता है कि काफी लोग गाँव वाव से आते हैं, तो वो थोड़ी ना पॉसिबल हर लोगों के लिए। जैसे मेरा इंग्लिश बहुत ज्यादा फ्लुएंट नहीं, मैं यहाँ पढ़ा हूँ, कभी इंग्लिश में हम लोग पढ़े नहीं है। तो एक मेरा इंग्लिश में, कोई अगर कोई बॉम्बे के कॉन्वेंट में कोई पढ़ता है, वो दोनों की इंग्लिश में तो फ्लुएंसी रहेगी। यानी मैं कोशिश तो कर सकता हूँ, बट उसमें डिफरेंस बहुत आएगा। तो मैंने वो चीजों को बहुत ज्यादा कभी इंपॉर्टेंस नहीं दिया, ऐसा मुझे लगता है। यानी पैनल वाले भी शायद उसको नहीं देते होंगे। Yes, yes, yeah. अजून काय है मंगेश? Uh, yeah, yes, yes. So thank you very much. See, the questions asked by students of Sambodhi, and a very practical approach is discussed with all of you by Abhay Nannavre sir. तो देखो, अभी सर ने आप लोगों से काफी सारी बातें की। मतलब अभी हमारा जो डिस्कशन हुआ है वो ओवरऑल यूपीएससी को क्वालिफाई करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या प्लानिंग होना चाहिए, डिटर्मिनेशन, कंटिन्यूटी, डाउन टू अर्थ अप्रोच, ये सारी बातें, और अभी इंटरव्यू, मेंस राइटिंग, ये सारी बातें अभय सर ने आपके साथ डिस्कस की। मुझे लगता है कि ये जो सेशन है बहुत ही हेल्दी, बहुत ही प्रोडक्टिव, बहुत ही कंस्ट्रक्टिव सेशन रहा है। उन्होंने Hello, आपसे, sir. हाँ, यस, I had a doubt. बोलो। uh, yeah, yes, sir. As you have conducted the session very in a very interactive way, and thanks for giving your valuable time. And I would like to ask you regarding the sir during the preparation journey. Oftentimes the journey is very lonely, and we as aspirants we have to sacrifice many things to Yes. reach our goals. हम्म। And when the aspirants when the relatives even ask
टू द एस्पायरंट्स लाईक तू काय करतोस आता तुझ्या लाईफ मध्ये, कसं चालू आहे, and we have to give them a certain answer. And when we tell them that we are preparing for UPSC or any other competitive exams, they are like अरे ते खूप कठीण असतं, ते खूप त्याच्यामध्ये खूप कॉम्पिटिशन आहे, ते नाही होणार, दुसरे काय तुझे विचार आहेत का, पैसे कसे कमवशील, and how to deal with such type of questions. And in certain cases, even when the aspirant prepares their 100% and they don't get selected, so at that moment the it's very depressing for the aspirants and in the society as well, because there is no plan B for the serious aspirants. So what is the strategy to deal with such mental downfall? डाउनफॉल ना, हा ओके. काय काय नाव आहे तुझं? माझं नाव सर सम्यक कर्वे. सम्यक, ओके. सम्यक, सम्यक देखो, जो प्रॉब्लम तुमने फेस किए ना, ऐसा मेरे साथ भी हुआ है. एक चीज ध्यान में रखना कि सिविल सर्विस का एग्जाम वन ऑफ द हार्डेस्ट एग्जाम होता है. तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है? I have completed my graduation in BA history. I have specialized in history, sir. ओके. देखो ऐसा है ना कि बाकी यूनिवर्सिटी एग्जाम से ये एग्जाम काफी डिफरेंट होता है. और इट इज मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि तुम्हारा ना ये जो एग्जाम ना टफनेस चेक करता है, क्योंकि मैंने जो बोला ना कि मैं 5 बार फेल हो चुका हूँ, यानी चौथा और फिफ्थ अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ है. तो जो शुरू में मैंने बोला था कि जो हमने अगर कोई रबर का बॉल है वो गिरता है तो उतने फास्ट बाउंस होता है ना. तो लाइफ में मेरे साथ में ऐसे हुआ है कि जब मैं प्रिपरेशन करता था कि थैंक्स टू माय पेरेंट्स की वो हमेशा मेरे साथ में रहे. यानी पहले चीज ध्यान में रखना कि तुम्हारे मदर फादर कभी तुमको ये नहीं पूछेंगे तुम क्या कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे आज में 6 में लगा हो. तो मेरे पेरेंट्स से ज्यादा चिंता ना आजू बाजू लोगों को लगती थी कि ये साला बेरोजगार है, Yes, ये yes. ये कुछ काम नहीं That is करता, वगैरह the वगैरह question वगैरह. which I'm addressing, sir. Yes, हाँ, तो correct. देखो देखो यार, एक चीज बोलूं क्या, अभी लास्ट 10 इयर्स में ऑलमोस्ट यूपीएससी का जो पोस्ट है ना वो हाईली पावरफुल पोस्ट है. और मैं बोल रहा हूँ कि मैंने लास्ट 10 इयर्स में ऑलमोस्ट 5 इयर्स मैंने इन्वेस्टिगेशन में काम किया है, रेड में काम किया है. और लॉट ऑफ पॉलिटिशियंस लोगों से हमको प्रेशर आया, ये आया हुआ है. तो तुमको ये प्रिपरेशन है तुमको उतना टफ बनाती है, ठीक है. तो शायद correct. शायद ये ना, ये तुम्हारा ये जो 5 लाख से जो 5,000 में लोग 500 में जो लोग आते हैं ना, उसमें यही डिफरेंस होता है कि तुम मेंटली इतना खुद को स्ट्रांग रखो कि अगर आगे वाले ने कुछ भी बोला ना तुम पे कुछ असर नहीं होना चाहिए. तो ठीक है ना, अपन देखो हम लोगों ने हमारे साथ होनेस्ट रहना चाहिए. मुझे पता है कि मैं उस टाइम भी सोचता था कि मैं मेरे बाप का पैसा खर्च यानी वेस्ट तो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है. मैं कहीं बाहर में जाके Yes. बैठते रहा, मैं कहीं पैसा फेंकते नहीं रहा. वो जो Yes, पैसा yes, है yes. वो मैं खुद की इसके लिए कर रहा हूँ. आई एम वेरी हॉनेस्ट पे. और ये भी है कि तुमसे ज्यादा जो है ना वो तुम्हारे बाजू वालों को उसकी चिंता रहेगी. और Correct, sir. जिस दिन सिलेक्ट हो गए ना तो ये लोग तुम्हें सर पे उठाएंगे, और फेल हो गए तो तुमको गालियां मारेंगे. तो Yes, that is तुमको what ना तुमको yes, हाँ, correct. तो ये चीज ध्यान में रखो कि तुमको दोनों जगह तुमको तैयार रहना है. तुमको वो लोग अगर जो तुमको पैर खींच रहे हैं तो उनको भी तुमको फेस आना चाहिए, फेस करने की हिम्मत नहीं चाहिए. सेकेंडली जब तुम सक्सेसफुल हो जाओगे, जब लोग तुमको ऊपर उठाएंगे वहां पे भी तुमको अलर्ट रहना चाहिए कि नहीं वो कौन लोग है, कि जब मैं ये बड़े पोजीशन में हूँ तो Yes, काफी लोग हमारे yes, पास अप्रोच correct, होते हैं. तो वो correct, टाइम में भी correct, तुमको ये देखना है कि ये कितनी फर्जी है. तो तुमको correct. अंदर अंदर से स्ट्रांग रहना चाहिए. दूसरी चीज, मैंने मेरे लाइफ में देखो ऐसा होता है ना कि हम लोगों ने साथ में काफी लोगों ने प्रिपरेशन किया है. यूपीएससी के प्रिपरेशन से एक ही ध्यान में रखना है कि आदमी का स्ट्रांगनेस बढ़ जाता है. देखो ऐसा है कि मैं जब भी जैसे चेतन ने बोला था कि मैं आईएएस नहीं बन पाया, ठीक है, मुझे इसका रिग्रेट नहीं है. अल्टीमेटली ऐसा है कि कितनी पोस्ट ही कितनी है, 100 ही पोस्ट है, बराबर है. तो Yes, sir, 100 पोस्ट correct. में, हाँ, तो 100 पोस्ट के बाद में कि बाकी लोगों का क्या होगा, बराबर है. Yes, yes, तो yes. इसको तुमने एक जॉब की तरफ देखो, एज लाइफ की तरफ मत देखो. और सेकेंडली तुमको ये प्रिपरेशन तुमको इतना मेंटली स्ट्रांग बना देगा ना कि मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि जो बंदा यूपीएससी के एग्जाम कर रहा था उसने सुसाइड किया. मेरे Yes, लाइफ में yes, अभी yes, yes. ऑलमोस्ट मैंने 4-5 साल मैंने प्रिपरेशन की है, मेरे इतने दोस्त है
आज तक मैंने नहीं देखा कि कोई बंदा है, शायद मगर शायद कुछ बताएंगे तुमको, कि जो प्रिपरेशन करता था यूपीएससी का उसने लाइफ में गिव अप किया, उसने सुसाइड किया हो। ऐसा कभी Yes, नहीं हुआ, yes. क्योंकि ये तुमको ना लाइफ में तुमको स्ट्रगल करना सिखाता है। तो अगर एक चीज ध्यान में रखना, तुम में अगर क्वालिटी है ना, तुम ऊपर से नीचे आ ही जाओगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना कि अगर तुमने फेल हुए तो क्या हुआ, यहाँ पास हुए तो क्या हुआ, लाइफ तुम्हारी लाइफ तो खत्म नहीं हो रही ना। अगर तुम में स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है, तुम में काम करने की क्षमता है, और तुम पॉजिटिव सोचते हो ना, तो तुम लाइफ में सही में ऊपर जाओगे। और ये चीजें तुमको ये ध्यान में रखना कि सिर्फ ये प्रिपरेशन जो है सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए, यूनिवर्सिटी वाला प्रिपरेशन नहीं है। ये तुम्हारे लाइफ की, तुम्हारी पर्सनालिटी, थिंकिंग सब कुछ बदल देगा। तो ये चीज Correct, मैंने भी correct, sir. सीखी है। तो वो कभी नहीं सोचना। यानी ये तुमको ना खुद स्ट्रांग बनाएगा। और ये सबसे क्वेश्चन को ना स्माइल देके ना ये करना। मैं क्या करता था पता है, जब मुझे कोई पूछते थे ना, अरे वो तुमको भी जॉब लगा है क्या, मैं उसको काउंटर बोलता था, काका जी। अरे मेरे सामने वाले लोग बोलते थे, तो मैं उनको बोलता था, काका जी तुमच्याकडे एखादा जॉब असेल सांगा ना, मला पाहिजे आहे। आणि मैं उनको बोलता था कि तुम्हारे पास कोई जॉब हो तो बताओ ना, मैं करने करने रेडी हूँ। तो फिर आगे चुप हो जाता था। तो ये रियलिटी है, तुमको ये चीजें फेस करनी पड़ेगी, तभी तो तुम स्ट्रांग बन पाओगे ना। देखो Yes, correct, सिविल correct. सिविल सर्विस में तुमको इतने लोगों को, तुमको क्रिमिनल को फेस करना है। मैं काफी टाइम सर्च में गया हो ना, तो लोगों ने हमारे पर गन भी निकाली है। कभी भी ऐसे लोगों के पास घर गया हो जो साला बुकी थे, मर्डर करके आए थे, उन लोगों से भी हमने टैक्स कलेक्ट करके लेके आया है। तो उसके लिए थोड़ा टफ तो चाहिए ही चाहिए, है कि Yes, नहीं। sir. Correct, तो correct, correct. हाँ, तो वही बोला कि वो तुमको ना, यानी तुम कभी फेल नहीं होगा। यानी तुम कभी मत समझना कि सिर्फ पास होना तो वो टारगेट है। लाइफ में मैंने देखा है जो लोग सिलेक्ट भी नहीं हुए ना, वो अभी भी काफी अच्छे पोजीशंस पे है। उन लाइफ के दूसरे फैक्टर में चले गए हैं। और उन्होंने कभी सुसाइड या ऐसे कुछ नहीं किया। जो वीक होते हैं वही सुसाइड करते हैं। तो ये चीज हमें ध्यान एग्जैक्टली, में रखो, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। ठीक है। या Thank you for such यस। brilliant answer, sir. नहीं, वो मेरा एक्सपीरियंस Thank you so much. है। सम्यक कसं आहे की या एक्झामिनेशनला, जसं आता सरांनी सांगितलं, अभय सरांनी, की हो sir, हो. या एक्झामिनेशन मधून तुम्ही खूप काही शिकता. हो आणि sir. फक्त सगळ्यात महत्वाचं मी सगळ्यांनाच सांगेन की यू शुड हैव आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि व्हाई आई एम एंटरिंग इनटू सर्विसेज। देखो हम जिस सर्विसेज में उतर रहे हैं, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हूँ, यू आर अपेयरिंग फॉर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसमें डोमिनेटिंग क्या है, पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। मतलब संघ के मतलब ऑल इंडिया के जो लोग हैं उनकी सेवा करने के लिए जा रहे हैं हम लोग, है ना। तो सेवा करने के लिए हमें खुद को तैयार करना होगा। तो ये बाकी नौकरियों से Correct, अलग नौकरी है ना। हम स्टेट correct. की एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग, तो महाराष्ट्र के लोगों की सेवा, तो सेवा है, सर्विस है, Correct. और अच्छी सर्विस है। इसमें आप लोग घर वाले क्या बोल रहे हैं या बाकी क्या बोल रहे हैं, और अभी तो सब में आपने जस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो यू शुड नॉट थिंक अबाउट दिस थिंग्स। मतलब Yes, sir. उस क्राउड के बारे में मत सोचो कि जो 4 साल लगा रहे, 5 साल लगा रहे। अरे भाई, मैंने तो आप लोगों Correct, को correct. फर्स्ट अटेम्प्ट में जो आईपीएस हुए हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में जो आईएएस हुए हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में जो आईआरएस हुए हैं, उनके साथ मैंने इंट्रोडक्शन करवा के दिया है, राइट। तो बेसिकली ऐसे Correct. स्टूडेंट्स हमारे भी है, संबोधि के हैं और काफी जगह के, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाते हैं। तो अगर आप 12th से स्टार्ट करते हो आपकी प्रिपरेशन, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में पैरेलली, या इमीडिएटली आफ्टर ग्रेजुएशन करते हो, तो आप लोगों को, और वो प्रॉपर गाइडेंस में करते हो, जैसे हमारे जैसे लोगों के गाइडेंस में करते हो, तो आपको शायद 4-5 साल नहीं लगेंगे, आप एक अटेम्प्ट में, 2 अटेम्प्ट में हो जाओगे। तो उसकी चिंता अभी से मत करो, Correct, ठीक correct. है। सबसे Yes, sir. इम्पोर्टेंट Yes, कि yes, yes. ये पूछो कि मैंने अपना बेस्ट दिया है क्या। अगर मैं मेरा बेस्ट Okay. नहीं दे रहा Correct, हूँ, correct. अगर मैं पहले 6 महीने में ही थक जा रहा हूँ, एक अटेम्प्ट में ही थक जा रहा हूँ, तो फिर ये सर्विस आपके लिए नहीं है। और मैं आपको एक बार और बता दूंगा कि जिनका सिलेक्शन सिविल सर्विसेज नहीं हुआ, उनका सिलेक्शन, काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जिनका बैंक में हुआ, पब्लिक सेक्टर में हुआ, स्टेट सर्विसेज में हुआ, स्टाफ सिलेक्शन थ्रू हुआ, कहीं ना कहीं सिलेक्शन होता है। लेकिन अगर आप इसको फोकस करोगे अभी से, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, इसके बारे में मत सोचो। फर्स्ट फोकस ऑन योर प्लान ए। इफ यू हैव डिसाइडेड अबाउट सिविल Yes, sir. सर्विसेज, Yes, then think yes. about civil services only. Okay, don't think about rest of the this thing. और बाकी तो कहने वाले बहुत रहते हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं देना, ठीक Even है। I agree, sir. I या agree, agree, agree. सो थैंक यू Yes, वेरी sir. मच, Yes. थैंक यू वेरी मच अभय फॉर दिस वेरी वेरी प्रोडक्टिव, वेरी कंस्ट्रक्टिव
and very strategic guidance to students of Sambodhi Career Academy. And this guidance lecture will reach to the rest of the students of India through our YouTube channel also. This is not just related to or limited to the students of Sambodhi. Your guidance will definitely help students across India through our YouTube channel. So you shared your experiences during preparation, your struggle, your difficulties, okay, and you found way through these difficulties, and now you have shared your experiences within services also, की कशा पद्धतीने टॅक्स कलेक्शनचं मोठं जे टार्गेट असते ते अचीव करून कसं देशाबद्दल आपण आपली सर्व्हिस निभवतो आणि कशा पद्धतीने नॉट जस्ट IAS पण बाकी सर्व्हिसेस पण किती प्रोडक्टिव्ह असतात. All these things, and you answer to the questions of students of Sambodhi Career Academy. I express my gratitude from the bottom of my heart, and I am expecting your further association for the Yes, benefit yes, of the students at Sambodhi. Okay, and thanks students for listening to Abhay sir. Okay, and I wish you a great success on the platform of Sambodhi. ओके सर ने जो एक इस पूरे सेशन का एक लाइन था कि नेवर गिव अप, ठीक है, तो नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड अप्रोच जो है आप लोगों को इस सेशन से सीखना है और उस लाइन को अपने दिल और दिमाग में बिठा लो. सो कोऑर्डिनेशन ऑफ हार्ट, कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ योर माइंड will produce your best result. ठीक है, so I conclude this session. Okay. Thank you, Mangesh. Once again, thank you very much. Thank you so Bye-bye. much, sir. Thank you, sir. Both of you for your Thank you, valuable sir. time, and thank you, sir. Yeah, thank you very much.